यस, गुड आफ्टरनून सभी को। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम अब वेबिनार शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आप सबका इंट्रोडक्शन करवा देना चाहती हूँ, जो आज हमारे साथ इस विषय पर वेबिनार लेने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वामन कुलकर्णी जी। वो चीफ थीमेटिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है बाइफ में, और उन्होंने एग्रीकल्चर में बीटेक किया हुआ है। उन्हें 22 सालों से भी अधिक एक्सपीरियंस है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट, इन सभी क्षेत्रों में। अ, और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आपके अगर इस विषय से रिलेटेड, स्पेसिफिकली इस विषय से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, जो कुछ भी है आपके क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में डाल सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं। इस वेबिनार के अंत में आपके सभी क्वेश्चंस को वामन कुलकर्णी सर आप उत्तर देंगे। बीच में हम कोई भी क्वेश्चंस नहीं लेंगे। वेबिनार के अंत में आपके सभी क्वेश्चंस को उत्तर दिए जाएंगे। तो इसी के साथ हम वेबिनार शुरू करते हैं। ओवर टू वामन कुलकर्णी सर। Thank you, Pooja. Good afternoon to everybody. Am I audible? Yes, sir. Okay. Now we can start on the topic. Topic थोड़ा basic लिया है because it is very necessary to begin with work from a basic concept of designing, planning for watershed development interventions. So कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा repetitive हो सकता है, या वो इसके लिए already they have been very well acquainted with the concept, but for entire group, webinar has been planned in a way so that we can understand the theme, situation, planning process, and most important activities which are related to the designing of the proposals for watershed development and any of the CSR project. So in that way, we'll cover the basic concept of watershed development, different interventions of the watershed development, and especially land capability classification, which is the important tool for the planning of soil conservation measures. So we'll cover LCC classification in detail along with all interventions of the watershed. Is that okay? Yes, sir. Okay. So to start with, everybody knows watershed kya hai. So watershed is nothing but a geographical area which contributes runoff to a common point. इस स्लाइड में आप देख रहे हैं अलग अलग एरिया से जो रन ऑफ कंट्रीब्यूट होके एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम को, दूसरी स्ट्रीम के तीसरी स्ट्रीम को, देन रिवर को, और जो कॉमन एंड पे जो पानी यहाँ पे आता है, इस पूरे कैचमेंट को हम बोलते हैं वाटरशेड। और अलग भाषा में इट इज अ डिवाइड लाइन. दिस लाइन वी कॉल्ड एज अ रिज लाइन which divides one drainage basin from another. मीन्स यहाँ जब बारिश होती है तो कुछ पानी यहाँ इस दिशा में आता है, कुछ पानी अपोजिट दिशा में जाता है. So this line we called as a ridge line which divides one drainage basin from another and contribute all runoff from this catchment area to a common destination or a common outlet that we called as a watershed. Watershed may be small, watershed may be big. So based upon the calculation of area, its categorization is done. In other term, we may call it is a conservation of soil and water by intermittently constructing structures along the path of flowing water. So ये watershed development में हम क्या करते हैं? So starting from ridge to valley, ये जो अपना approach है, we are working from ridge to valley approach. So we are working from the ridge, obstructing rainwater, obstructing flow of the flowing water in such a way that running water can be stopped for the conservation, for the use, for increasing soil moisture and controlling the soil erosion. So that is most important. So ridge to valley काम क्यों करना है? अगर हम डायरेक्ट वैली में काम करेंगे so entire soil loss जो हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो नहीं होगा, and soil may be eroded from these all streams, all fields, all streams, and it will get accumulated in the drainage nala or a structure. Then structure become completely silted in 1 or 2 years. So
it is very important to work for soil conservation first, then we'll go for the water conservation. Yeah, automatically hota hai. Once soil is there, water comes later on. So we'll work first on the soil conservation parameter to control the soil erosion process. That is the most important area of the watershed. After that, we focus on the water conservation. So this is the geographical area or a ridge line, divide line, which separate one drainage basin from another and contributes all runoff from this catchment to a single outlet point. So it is, as we discussed, it's a hydrological unit of an area draining to a common outlet point or recognized as an ideal unit for a planning development of land, water and vegetation. हम watershed approach पे क्यों काम करते हैं? Because we know the starting point, we know the end point, so that we can calculate the exact quantity of runoff, exact quantity of water available for irrigation, for storage. So it is bit easy to work in watershed rather than a diversified villages. अगर अलग-अलग गांव में हम काम करेंगे, we never know इस गांव में कितने गांव का पानी आ रहा है. अगर हमें पानी की क्वांटिटी ही मालूम नहीं पड़ेगी, then we could not able to work on the water balance parameter. So that watershed is a very scientific unit in which we can quantify exact quantity of water available for conservation, available for recharge, available for a runoff, or available for a surface flow, whatever. So that it is a defined unit, जहाँ हम ridgeline हमें मालूम है, outlet मालूम है, so we can plot that area on a map. We can have an exact calculation of the area into rainfall. We can calculate the exact quantity of water available, and on that basis, we can plan the various structures from ridge to valley. ऊपर से नीचे तक हम अलग-अलग एरिया में as per site situation structures को प्लान करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं. So, and it is very much important for the food, social and ecological security. Everybody knows. So इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है. Watershed serve as the basis for providing food, fodder, fuel, livelihood and conserving environment also. So it fulfills all the ecological parameters. So in that way, watershed is a important hydrological unit. So these are broad treatments of the watershed. So first, area treatments or soil conservation measures we can see. So continuous contour trenches, we can call it as a CCT, or staggered contour trenches, SCT, farm bunds for treatment of private farmlands, farmers' land, then stone bunds, masonry field outlets, gully plugs for controlling flow of water, for reducing velocity of water from the small gullies. Gully plugs will be undertaken in a series way, in a series action. Loose boulder structures, gabion structures, then farm ponds, percolation tank, check dam. So these are all interventions which we are planning in watershed development from ridge to valley, considering the type of area, considering the slope of the area, considering the infiltration characteristics of the soil. So all these parameters are taken into consideration while designing the different structures. So one thing always we should take into mind that all the treatments will be scientifically planned, scientifically designed, so that desired impact can be achieved. Why? क्यों करना है ये watershed? Everybody knows because of soil erosion is the major problem. हम देख रहे हैं अगर watershed का काम नहीं होता है या from last 50 years, Government of India, central government, state government, they are implementing so many projects on watershed. Still there is a gap, still there is a need of watershed. Why? Because soil erosion is a continuous process.
एक बार कर दिया छोड़ दिया ऐसा नहीं है. सो सॉइल इरोजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो एवरी ईयर बारिश के साथ मिट्टी का बहना तय है, वो मिट्टी का बह के जाना तय है. अगर उस मिट्टी को हम खेत की मिट्टी खेत में नहीं रोकेंगे, हिलॉक पे अगर हिलॉक की मिट्टी नहीं रोकेंगे, नाला पे नाला की मिट्टी नहीं रोकेंगे, तो इट विल erode in a small drain, then big drain, then it will goes to the river, and ultimately that soil goes to the sea, which cannot be taken back. So ये जो साइकिल है सॉइल इरोजन का, जो विशियस सर्कल है, इसको अगर रोकना है, so we need to work for the soil conservation part first to control the soil erosion. At the same time लॉस ऑफ द टॉप फर्टाइल सॉइल को हमें प्रिवेंट भी करने में उसमें मदद मिलेगी. सेकंड इंपॉर्टेंट इज पुअर ग्राउंड वाटर स्टेटस. ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द कम्युनिटी, लाइव स्टॉक, डोमेस्टिक यूज, जो हम डिपेंड है ग्राउंड वाटर टेबल पे, तो ग्राउंड वाटर टेबल धीरे धीरे उसका लेवल नीचे जा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट रिचार्जिंग एट दैट एक्सटेंट. जिस एक्सटेंट से हम पानी को उठा रहे हैं for the irrigation, for the agriculture use, for the city requirement, उस तरह से पानी को जमीन में जाने के लिए टाइम स्पेस नहीं मिल रहा है. So poor groundwater status is almost a major problem of India. In major states like Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, some part of Bihar, Orissa, acute shortage of water वहां पे है. पानी का प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलता है. तो ये जो भूजल का पानी है, जमीन के नीचे वाला पानी है, ग्राउंड वाटर टेबल जो हम बोलते हैं, तो उसको रिचार्ज करने के लिए हमें वाटरशेड पे काम करना जरूरी है. देन इट विल आल्सो एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी. जो टॉप फर्टाइल सॉइल हर साल बह के जा रहा है पानी के साथ, अगर वो टॉप फर्टाइल सॉइल, अगर वो मिट्टी का टॉप लेयर अगर हम रोकते हैं, तो अपने आप खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी, माइग्रेशन रुकेगा. लोगों को अगर खेत में ही आमदनी मिलेगी, खेत में काम मिलेगा, तो माइग्रेशन रुकेगा, सिटी का प्रेशर कम हो जाएगा. क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है आजकल, जो हम बोल रहे हैं कि ज्यादा बारिश आ रहा है तभी भी किसान का नुकसान हो रहा है, बारिश कम आ रहा है तभी भी किसान का नुकसान हो रहा है. सो वाटरशेड एक ऐसा टूल है, ये इस क्लाइमेट चेंज के रिस्क को एड्रेस करता है, एंड ये किसानों को ड्राउट के लिए भी मदद करता है, एंड फ्लड के लिए एक्सेस रन ऑफ को निकालने के लिए भी मदद करता है. एंड लास्ट इज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन. तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम वाटरशेड के ऊपर काम करते हैं. सो सबसे पहले जो वाटरशेड में आप देखेंगे, सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो हमें हर लेवल पे ध्यान देना पड़ता है, वो है स्लोप, जिसे हम उतार बोलते हैं या ढलान बोलते हैं. तो स्लोप ऑफ लैंड, स्लोप ऑफ हिलॉक, स्लोप ऑफ नाला, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा स्लोप है, जितनी ज्यादा ढलान है, उतना ही पानी का वेग ज्यादा होगा. जितना पानी का वेग ज्यादा रहेगा, उतनी ही वो मिट्टी को अपने साथ लेके आगे बढ़ेगा, एंड सॉइल इरोजन, जो मिट्टी का बहना है, वो बढ़ता जाएगा. सो नीड टू रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ वाटर. तो इसमें क्या है, हमें स्लोप को जगह जगह पे रोकना है. स्लोप को हमें रोकना कैसा है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स करके हम स्लोप को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं. तो ये अपने आप जो बहने वाली मिट्टी को रोकने का काम करेगा. एक सिंपल कैलकुलेशन जो किया है साइंटिस्ट लोगों ने, जो प्रूवन है, इफ स्लोप ऑफ लैंड इज डबल्ड, द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स. अगर 2% से स्लोप 4% होता है, तो जो बहने वाला पानी है उसकी गति 4 टाइम्स बढ़ती है, और जितनी गति बढ़ेगी उतनी ही वो अपने साथ मिट्टी को लेके जाएगी. सो वी नीड टू रिड्यूस द स्लोप, वी नीड टू ऑब्स्टैकल द स्लोप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण है वाटरशेड में हमें क्या देखना है, स्टैटिक वाटर बैलेंस भी देखना है, कि कितना पानी आया, कितना पानी रन ऑफ होके चला गया. रन ऑफ मीन्स पानी जो बह के जा रहा है. ईटी, इवेपोट्रांसपिरेशन, जो पानी तालाबों में रुका है, डैम में रुका है, उसमें से उसका बाष्पीभवन कितना पानी का हो गया है, क्रॉप के माध्यम से पानी कितना चला गया है, चेंज इन स्टोरेज कितना है. तो ये सब पैरामीटर्स के ऊपर भी हमें वाटरशेड में हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, और जिसके आधार पे हम गांव वालों को, कम्युनिटी को एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपके गांव में
या आपके वाटरशेड में इतना ही पानी आता है, इतना पानी आपको पीने के लिए लगता है, इतना पानी आपको खेती के लिए लगता है, तो आप इससे ज्यादा इसके ऊपर कोई प्लान मत करिएगा। सो इट विल बी यूजफुल टूल और क्रॉप वाटर बजटिंग के लिए ये बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है। अब कैलकुलेशन ऑफ स्लोप ये बहुत बेसिक मैंने लिया है, क्योंकि बहुत बार जब हम वाटरशेड की डेटा शीट भरते हैं या कोई प्रपोजल हम लिखते हैं तो कॉमन क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ वाटरशेड, है ना। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल मैंने यहाँ शेयर किया आप लोगों के साथ। तो स्लोप सबको मालूम है, स्लोप मींस वर्टिकल इंटरवल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल इंटरवल इनटू 100, और वी कैन से दैट डिफरेंस इन एलिवेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। दो पॉइंट का जो डिफरेंस है एलिवेशन का, उस एलिवेशन डिफरेंस को अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे और इनटू 100 करेंगे तो स्लोप निकल आता है। तो ये स्लोप कैलकुलेट करना बहुत इजी बात है, बट ये हमें फील्ड पे अलग अलग लेवल पे बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर, एनआरएम टीम मेंबर्स, हमें ये बीच बीच में इसको ट्रायंगुलेट करना है, ग्राउंड ट्रूथ करना है। इसके बाद जैसे जैसे आप फील्ड में काम करोगे 8-10 साल के बाद फिर अपने आप आपकी आईसाइट इतनी तैयार हो जाए कि देखते आपको पता चलेगा कि स्लोप रेंज है 5 to 6%, 10 to 15%। लेकिन वो लेवल आने तक आपको बीच बीच में ग्राउंड ट्रूथिंग करना है कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, टोपोशीट में अगर स्केल है 1:50,000 और टोपोशीट पे 2 पॉइंट है। टोपोशीट सबको मालूम है ना? हेलो सर एक्चुअली उनको बोलने का परमिशन नहीं है, तो ओके, मैं म्यूट किया है क्या? म्यूट किया है। तो हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग अगर आपको मालूम है तो। हाँ, सर ने जो क्वेश्चन पूछा, अगर आपको मालूम है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। सो टोपोशीट का जो स्केल होता है 1:50,000 एंड टोपोशीट पे अलग अलग कंटूर्स होते हैं, सबको मालूम है। तो एक कंटूर का पॉइंट है ए जिसका वैल्यू है 320 मीटर अबोव MSL मीन सी लेवल, और उस टोपोशीट पे दूसरा पॉइंट है बी, है ना, जो नीचे लेवल पे है, उसका वैल्यू है 240 मीटर। अब ये दोनों का जो डिस्टेंस है, मैप डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 6 सेंटीमीटर, ये टोपोशीट की बात कर रहे हैं। टोपोशीट पे पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द ओवरऑल स्लोप ऑफ द वाटरशेड? तो स्लोप ऑफ वाटरशेड क्या है? तो इसका मैंने एग्जांपल, इसका आंसर भी नीचे दिया है, यू कैन रीड ऑल्सो। तो स्लोप परसेंटेज मींस क्या है? जैसे हमने अभी ऊपर देखा, डिफरेंस इन एलिवेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इनटू 100। So difference in elevation means difference in elevation between A and B. A का elevation है 320 माइनस B का elevation है 240, तो ये हो गया 80 मीटर, मीन्स 2 पॉइंट का डिफरेंस है 80 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन A एंड B है 6 सेंटीमीटर। अब टोपोशीट का स्केल है 1:50,000 एंड 1:50,000 का मीनिंग ये होता है, अगर टोपोशीट पे 1 सेंटीमीटर है तो ऑन ग्राउंड उसका मतलब है वो 500 मीटर है। इसका एक लॉजिक है वो स्केल देने का। कोई भी मैप पे अगर आप स्केल देखोगे तो ऊपर स्केल दिया होता है, उस स्केल को हम ग्राउंड के साथ ट्रायंगुलेट कर सकते हैं। सो 1:50,000 अगर टोपोशीट पे स्केल दिया है तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर अगर टोपोशीट पे डिस्टेंस है तो ग्राउंड पे, जमीन पे वो डिस्टेंस 500 मीटर होगा। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 6 इंटू पास 500 मीटर। 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पेपर पे है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर, तो 6 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच? तो 6 इंटू 500 इक्वल टू 3000 मीटर। तो ग्राउंड पे वो डिस्टेंस है 3000 मीटर। तो हम स्लोप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे, स्लोप इक्वल टू 80 क्या है? डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। 80 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 100 equal to 2.7%. So we can say that कि एवरेज स्लोप ऑफ वाटरशेड है हमारा 2.7%। और आप सबको मालूम है वाटरशेड में अगर काम करना है, या कोई भी अच्छा वाटरशेड जिसे हम बोल सकते हैं जिसका स्लोप शुड बी मोर देन 1%। अगर 1% के नीचे स्लोप है तो उस वाटरशेड में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वहां लेवल लैंड है, और जहां लेवल लैंड है
वहाँ एरोजन कम होगा, मिट्टी का लॉस कम होगा, पानी का बहना लेवल कम होगा। सो वहाँ काम करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी ज्यादा स्लोपी वाटरशेड पे है। सो एनआरएम टीम का पार्ट होने के बावजूद वी शुड नो एग्जैक्ट calculation process of the slope from topo sheet or from ground or from with the help of hydromarker. सेम थिंग आप फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर हाइड्रोमार्कर से स्लोप निकाल रहे हो तो एक ट्यूब का एक पॉइंट अपर पॉइंट ए होगा, नीचे वाला पॉइंट बी होगा, 2 स्टैंड का डिस्टेंस होगा, उसका ए टू बी डिस्टेंस, उसको आप डिवाइड करोगे, यू कैन गेट द एग्जैक्ट स्लोप ऑफ द वाटरशेड। सो ये आपको निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि दिस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ वाटरशेड डेटा शीट। कोई भी वाटरशेड डेटा शीट आप भरते हो तो उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटरशेड कितना मीटर है, लोएस्ट लेवल ऑफ वाटरशेड कितना मीटर है, और मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल कितना मीटर है, एंड स्लोप ऑफ द वाटरशेड कितना % है। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो ये सब लोग इसको समझे और इस टाइप के एग्जाम्पल्स की ज्यादा प्रैक्टिस करें सो दैट आप आसानी से कौन सा भी टोपो शीट रेफर करके किसी भी वाटरशेड का स्लोप 5 मिनट्स में 2 मिनट्स में निकाल सकते हो। देन दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाटरशेड का गली ऑर्डर। हमने सीखा है कि वाटरशेड में हमें रिच टू वैली काम करना है एंड कंसिडरिंग दी कैचमेंट काम करना है। सो फर्स्ट ऑर्डर गली बोलते हैं किसको, सेकंड ऑर्डर गली किसको बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर गली किसको बोलते हैं। सो जो गली स्टार्ट होती है, खेतों में स्टार्ट होती है या अपर लाइन में स्टार्ट होती है और जिसका कैचमेंट 2 हेक्टर तक का है, जिस गली के एंड पे 2 हेक्टर का पानी आता है, 0 to 2 हेक्टर, वो फर्स्ट ऑर्डर गली है, वो गली की शुरुआत है। सेकंड ऑर्डर गली कब होती है? जब 2 फर्स्ट ऑर्डर की गली एक जगह आती है और उसका कैचमेंट होता है 2250 हेक्टर, 50 हेक्टर तक का पानी उस पॉइंट पे आता है, तो उसको सेकंड ऑर्डर ड्रेन बोलते हैं या सेकंड ऑर्डर गली बोलते हैं। थर्ड ऑर्डर गली किसे बोलते हैं हम? जब 2 गली, सेकंड ऑर्डर वाली 2 गली जब एक जगह मिलती है, उसको हम थर्ड ऑर्डर गली बोलते हैं, जिसका कैचमेंट होता है 50 to 500 हेक्टर एंड रिवर और बड़ा ड्रेन जो होता है 500 हेक्टर के ऊपर होता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर गली जो होती है 0 to 2 हेक्टर, इस पे हम गली प्लग, स्मॉल ब्रशवुड डैम, ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स डालते हैं सो दैट गली का स्टार्ट फॉर्मेशन हम वहीं से कंट्रोल करने में शुरुआत करें, तो आगे वो उसका साइज नहीं बढ़ेगा, गली का साइज नहीं बढ़ेगा, सॉइल आगे नहीं मूव होगा, सॉइल वहां का वहां रहेगा और वेलोसिटी वहां की कंट्रोल हो जाए। देन जब सेकंड ऑर्डर पे हम आते हैं तो सेकंड ऑर्डर पे हम थोड़े बड़े स्ट्रक्चर करते हैं, मीन्स लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, गैबियन स्ट्रक्चर, क्योंकि गली बड़ी हो गई है, पानी का वेलोसिटी ज्यादा है, पानी का क्वांटिटी ज्यादा है, तो वहाँ हम थोड़े बड़े स्ट्रक्चर्स करते हैं, पत्थर के, गैबियन और एलबीएस। जब थर्ड ऑर्डर पे आते हैं तो हम चेक डैम्स, अर्दन नाला बर्न्स, ऐसे परमानेंट स्ट्रक्चर करते हैं। और अगर हम ये साइज और ये एरिया को ध्यान में नहीं रखेंगे और हमें लगता है कि 50 हेक्टर के कैचमेंट में हम गली प्लग करें, तो गली प्लग सस्टेन नहीं होगा। गली प्लग शुड बी इन अ फर्स्ट ऑर्डर ओनली। गली प्लग हमेशा फर्स्ट ऑर्डर गली पे ही करना है जिसका कैचमेंट 0 to 2 हेक्टर पे है। ब्रशवुड डैम फर्स्ट ऑर्डर गली में ही करना है। लूज बोल्डर स्ट्रक्चर गैबियन सेकंड और थर्ड गली पे करना है। जैसे जैसे कैचमेंट बढ़ता है वी शुड मूव फॉर द परमानेंट स्ट्रक्चर, जैसा चेक डैम है, प्लम स्ट्रक्चर है, अर्दन नाला बंड है। तो ये कैचमेंट एरिया को ध्यान में रखना वाटरशेड प्लानिंग प्रोसेस में बहुत जरूरी है। सो वाटरशेड स्ट्रक्चर्स नीड टू बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कैचमेंट। क्षेत्र कितना है, आकार कितना है, उसके आधार पे हमें इसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अभी हम बिफोर गोइंग टू द स्ट्रक्चर्स हम लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सीखेंगे। जब हम वाटरशेड में काम करते हैं या जलग्रहण में काम करते हैं तो लैंड कैपेबिलिटी का क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
ये लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन जो सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट देहरादून ने डिजाइन किया है एंड विच इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर इंडिया फॉर एंटायर डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। सो उन्होंने पूरे चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया है। इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, इसमें सॉइल जो मिट्टी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं कि सॉइल की डेप्थ कितनी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका परमेबिलिटी कैसा है, देन वाटर लॉगिंग है या स्लोप कितना है, देन रेनफॉल कितना है, टेम्परेचर कितना है, विंड वेलोसिटी कितना है। सो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स और क्लाइमेट के फैक्टर्स, ये सबको ध्यान में रखते हुए पूरे जमीन को, पूरे लैंड को उन्होंने 8 क्लास में डिवाइड किया है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इज टू यूज द लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेबिलिटी एंड ट्रीट द लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। मीन्स लैंड की जितनी कैपेबिलिटी है वैसा ही ट्रीटमेंट करे। अगर लैंड को जरूरत नहीं है तो वहां ट्रीटमेंट मत करो। वाटरशेड करना है और वहां मिट्टी पानी पकड़ने वाली है, वहां वाटर लॉगिंग की समस्या है और आपने उस गांव में अगर आपने ये लोगों से नहीं समझा, आपने मिट्टी को देखते हुए नहीं जाना, आपने असेसमेंट अच्छी तरह से नहीं किया और वहां आपने स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए तो पूरे खेतों में पानी रहेगा, वाटर लॉगिंग की समस्या आ जाएगी। फिर लोग बोलेंगे आपके काम के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। फिर लोग वो बंधारे, वो बर्न्स उसको तोड़ेंगे, पानी को निकालेंगे। सो जहां वाटर लॉगिंग होता है वहां पानी को नहीं रोकना है, वहां पानी को निकालना है, राइट। जहां पानी नहीं रुकता वहां पानी को रोकना है। सो ये जो सब सिचुएशंस हमें स्टडी करना होता है उसको लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें 2 ग्रुप है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सो ग्रुप ए इज लैंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन एंड ग्रुप बी इज लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। सो ग्रुप ए में कौन सा क्लास आता है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ये चारों क्लास ऐसे हैं जिसमें अच्छी तरह से खेती होती है, बागवानी होती है, हॉर्टिकल्चर होता है और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, ज्यादा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। स्लोप भी यहाँ बहुत कम होता है। लेकिन ग्रुप बी जो है लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, जिसमें क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ये 4 क्लास की जमीन उसमें आती है। इसमें हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। स्लोप ज्यादा है तो स्लोप को कम करने के लिए टेरेसिंग करना पड़ेगा, बंडिंग करना पड़ेगा, गली प्लगिंग डालना पड़ेगा। सॉइल का डेप्थ बहुत कम है तो वहाँ इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन, पानी को हम कैसा वहां रोक सकते हैं, वहां कैसा कंजर्व कर सकते हैं, वो प्रैक्टिसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर सॉइल डेप्थ कम है तो वहां पास्चर्स डेवलप करने पड़ेंगे। कम्युनिटी जहाँ घास आ सकता है सिर्फ वहां घास की ही हम ग्रास का ही उपयोग वहां करेंगे और उसका उपयोग पास्चर डेवलपमेंट के रूप में करेंगे। और कुछ लैंड है वहां सिर्फ फॉरेस्ट आ सकता है, मीन्स वहां हम कुछ नहीं करेंगे, बस सीड सोइंग करेंगे और उसको एज इट इज फॉरेस्ट रीजनरेशन के लिए छोड़ देंगे। तो ये अपनी जो जमीन है वो कौन से क्लास में आती है, ये सब वाटरशेड के टीम को देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये विच क्लास की जमीन है। सो हम समझेंगे लैंड क्लास 1, 2, 3, 4 उसके क्या क्या पैरामीटर्स है। सो these are the 9 major parameters of the class 1, class 2, class 3, class 4. सो कलर ऑन ए मैप ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। जो डीपीआर में हम मैप कोडिंग करते हैं तो डीपीआर में जो हम मैप लगाते हैं तो क्लास 1 अगर लैंड है तो उसको ग्रीन कलर करना है हमेशा, क्लास 2 है तो येलो, क्लास 3 है तो रेड, क्लास 4 है तो ब्लू। दिस इज अ स्टैंडर्ड नॉमिनिक्लेचर गिवन बाय द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अभी डिग्री ऑफ लिमिटेशन फॉर यूज, जैसे मैंने बोला कि क्लास 1 में क्या है लिमिटेशन, वेरी फ्यू, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। क्लास 1 इज अ फर्टाइल लैंड, एकदम अच्छी सॉइल है, बढ़िया सॉइल है, लेवल लैंड है, वहां आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, इसमें सभी प्रकार के क्रॉप आते हैं। सो डिग्री ऑफ लिमिटेशन फ्यू है। जैसा क्लास 2 पे जाते हैं मॉडरेट, थोड़ा स्लोप बड़ा है, थोड़ा टेक्सचर चेंज हुआ है तो उसका डिग्री ऑफ लिमिटेशन मॉडरेट हुआ है। क्लास 3 पे जाते हैं सीवियर हुआ है,
वहां थोड़ा स्लोप और बड़ा है, इरोजन बड़ा है ना, एंड 4 पे जाते हैं तो वेरी सीवियर हुआ है। तो ध्यान में रखने के लिए बहुत सिंपल है, जैसे जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हम आगे आगे बढ़ते हैं, उसका कैपेबिलिटी, क्रॉप उगाने का क्षमता उसका कम कम होता है। ये सिंपल ध्यान में रखो, है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे आप देखा डिग्री ऑफ लिमिटेशन फॉर यूज, फ्यू, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये जो अलग अलग टेक्सचर है, क्ले, लोम, सिल्ट के, तो क्लास 1 मीन्स लोम, वेरी फर्टाइल सॉइल है वहां पे। क्लास 2 में भी लोमी सॉइल है। क्लास 3 इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्ले एंड लोमी सैंड्स, एंड 4th में क्ले एंड सैंड्स। सॉइल डेप्थ क्लास 1 का वेरी डीप, बहुत अच्छा है। क्लास 2 का उससे थोड़ा कम है, क्लास 3 का और कम है, और क्लास 4 का उससे भी कम है। स्लोप भी आप वैसे देखेंगे, क्लास 1 मीन्स नियरली लेवल, एकदम लेवल लैंड है, उसको आपको बांध बंदिस्ती करने की जरूरत नहीं है, फार्म बंद डालने की जरूरत नहीं है। जस्ट वहां आप किसानों को क्रॉप प्लान सजेस्ट करो एंड टेंटेटिव प्रिवेंटिव मेजर्स बताओ। आपको क्लास 1 लैंड के लिए ज्यादा वाटरशेड ट्रीटमेंट डालने की जरूरत नहीं है। क्लास 2 में 1 to 3% स्लोप है, क्लास 3 में 3 to 5% है, और क्लास 4 में 5 to 15% स्लोप है। ये स्लोप कैटेगरी थोड़ी ध्यान में रखना। तो ये स्लोप, जितना स्लोप ज्यादा है इरोजन बढ़ता है। अभी हमने सीखा कि स्लोप 5 to 6% है तो इरोजन लेवल भी ज्यादा होगा। तो क्लास 1 में E1 है, E1 मींस इज निग्लिजिबल। देन क्लास 3 में E2 है, क्लास 4 में E3 है, तो स्लोप इरोजन लेवल बढ़ रहा है। ड्रेनेज का जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, ड्रेनेज एक्सेसिव वेटनेस, कुछ लैंड की एक खासियत होती है कि वो पानी को पकड़ती है, जिसको हम वाटर लॉगिंग सॉइल बोलते हैं, वाटर लॉक सॉइल बोलते हैं। तो क्लास 1 अच्छी होती है, वो पानी को पकड़ती नहीं है। लेकिन क्लास 4 की लैंड है एक्सेसिव वेटनेस, वो पानी को पकड़ सकती है। तो क्लास 4 की लैंड में काम करते वक्त हमें लोगों को पूछना है, वो सॉइल को देखना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है कि अगर ये पानी को पकड़ने वाली जमीन है तो यहाँ फार्म बंडिंग नहीं करना है, यहाँ चेक डैम नहीं करना है, या अर्दन नालाबंद नहीं करना है। वहां हम ड्रेनेज का प्रैक्टिस फॉलो करके वाटरवेज डाल के उस खेत का पानी हम निकाल के बाहर लेके उसको जाना है। सो ये पैरामीटर्स उसके होते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो ब्रॉडली अगर हम देखें, क्लास 1 इज अ गुड लैंड, वेरी गुड लैंड, जिसमें बहुत अच्छा क्रॉप्स आते हैं, सभी प्रकार के क्रॉप आते हैं। क्लास 2 इस थोड़ी उससे लेवल कम, उसमें भी पूरा क्रॉप हम ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। क्लास 3 को फार्म बंडिंग करना पड़ेगा, थोड़ा और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और क्लास 4 को उससे भी ज्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये उसके क्लासिफिकेशन के कुछ मेजर पैरामीटर्स है कि टेक्सचर ऑफ द सॉइल क्या है, सॉइल डेप्थ कितना है, स्लोप कितना है, और इरोजन का लेवल क्या है, इफेक्ट ऑफ पास्ट इरोजन ऑन ससेप्टिबिलिटी टू इरोजन, E1, E2, E3, E4, वो सब चीजें क्या है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद वाले जो क्लास है, अभी तक हमने 1, 2, 3, 4 सीखे, उसके बाद है 5, 6, 7 और 8। तो इसको भी स्टैंडर्ड कलर कोडिंग के साथ दिया गया है। 5 लैंड क्लास है तो उसको आप डार्क ग्रीन करो या अनकलर रखो, 6 को ऑरेंज, देन ब्राउन, और 8 लैंड क्लास है तो पर्पल, राइट। डिग्री ऑफ लिमिटेशन फॉर यूज, इसमें भी वही सीक्वेंस है। 5 क्लास से 6 पे जाएंगे, 6 पे 7 पे जाएंगे, 7 से 8 पे जाएंगे, तो उसकी सिवेरिटी बढ़ती है, राइट। और 5, 6, 7, 8 ये ऐसे लैंड क्लास है जिसमें एग्रीकल्चर नहीं होता। ये कल्टीवेबल वेस्टलैंड हो सकती है, ये वेस्टलैंड हो सकती है, या परमानेंट डिग्रेडेड लैंड हो सकती है, या स्टोनी लैंड हो सकती है। इसमें एग्रीकल्चर होना बहुत मुश्किल है। तो इसमें हमें ऐसे ही चीजें प्लान करनी है। अगर क्लास 5 लैंड है और किसान के पास ऐसी बहुत सारी लैंड है जो क्लास 5 में आती है, तो वहां हमें ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, हम वहाँ फॉरेस्ट्री का मॉडल कर सकते हैं, हम वहाँ सिल्वी पास्चर कर सकते हैं, so that wasteland can be converted into productive asset। और at the same time वो wasteland में जो soil erosion होता है, जो मिट्टी बह के जा रही है, जो पानी बह के जा रहा है, और दिन ब दिन उस
एक लैंड क्लास से वो अगले लैंड क्लास पे चली जा रही है, बिकॉज उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अगर एवरी लैंड क्लास पे हम प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट करें तो वो लैंड क्लास वही लैंड क्लास में रहेगा। अभी हम बोलते हैं कि 10-15 साल पहले ये फॉरेस्ट, ये हिलॉक पे बहुत अच्छा फॉरेस्ट था, आज यहाँ एक भी पेड़ नहीं है। तो सब पेड़ काटने के कारण क्या हुआ, पेड़ कट गए, घास चला गया, पूरा हिलॉक ओपन हो गया रेनफॉल को। जैसे ही बारिश आता है पूरा मिट्टी स्लोप के साथ बह के चला जाता है, मिट्टी चले जाता है तो वहां फिर नेचुरल वेजिटेशन नहीं आता, धीरे धीरे वहां पूरा स्टोन्स पत्थर ओपन अप हो जाते हैं एंड दैट बिकम्स अ डेड कंप्लीटली वेस्ट पैच, जिसके ऊपर ना वेजिटेशन आएगा ना फॉरेस्ट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्यों हुआ, ये होने में बहुत साल लगे, एक साल में 2 साल में नहीं होता। बट अगर हम चेक नहीं करेंगे सिचुएशन को, अगर वाटरशेड के लैंड क्लास को हम चेक नहीं करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट डिजाइन नहीं करेंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। 5-6 साल में अच्छा जमीन लैंड क्लास 2 में चला जाएगा, 2 का 3 में चला जाएगा, 3 का 4 में चला जाएगा, 4 का 5 में चला जाएगा। सो वी नीड टू टेक केयर एंड हमें प्रॉपर इंटरवेंशन उसके ऊपर प्लान करने हैं। सॉइल डेप्थ की बात करें तो बहुत लैंड क्लास 5 में सॉइल डेप्थ अच्छी है, बट इरोजन ज्यादा है। इसमें सॉइल डेप्थ D1 बहुत कम है। जो 8वां लैंड क्लास है वो रॉकी है, वेरी शॉलो है, उसमें सॉइल डेप्थ है ही नहीं। इरोजन का स्टेटस भी ज्यादा है, गलीज है, ड्यून्स है। तो ये ध्यान में रखो कि 1, 2, 3, 4 सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, जहां हम पूरे सीरियल क्रॉप, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। और 5, 6, 7, 8 जिसपे हम ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सिल्वी पास्चर और नेचुरल रीजनरेशन, या हम वैसे ही छोड़ देंगे, वो अपने आप नेचर के साथ थोड़ा बहुत कंट्रोल मेजर के साथ उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो जब हम वाटरशेड के प्लानिंग करने के लिए हम फील्ड में जाते हैं तो हम हर एक खेत में जाते हैं। तो किसान के खेत में जाने के बाद हम क्या देखते हैं कि उस खेत का एरिया कितना है, स्लोप कितना % है, ढलान कौन सी दिशा में है, सॉइल डेप्थ कितना है, राइट। ये 4-5 पैरामीटर स्टडी करके हम उसका लैंड क्लास निकालते हैं और फिर हम डिफाइन करते हैं कि इस खेत में हमें क्या करना है। इसमें फार्म बंद करना है या रिपेयर ऑफ फार्म बंद करना है, या सिर्फ प्लांटेशन करना है, हॉर्टिकल्चर करना है, या आउटलेट करना है, या फिर पानी पकड़ने वाली जमीन है तो वाटरवेज करके पानी को निकालना है। ये हमें नेट प्लानिंग करते वक्त ये लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और इसी के अनुसार हमें अपने इंटरवेंशंस खेतों में प्लान भी करने हैं। ये एक उसका ग्राफिक्स दिया है कि सुटेबिलिटी ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस फॉर डिफरेंट लैंड यूज। मींस लैंड 1 है तो ये आप इसमें सभी चीजें कर सकते हो, है ना। सो उसमें एग्रीकल्चर आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, तो उसका डिग्री उन्होंने अच्छा दिया है। जैसे जैसे आप क्लास की आगे तरफ बढ़ोगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, उसका डिग्री बहुत कम हो रहा है। और जैसे आप लैंड क्लास 8 देख रहे हो तो 8 रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, तो 8 में कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट होगा। 7 जो है उसमें लिमिटेड ग्रेजिंग हो सकता है, पास्चर डेवलप हो सकता है, लिमिटेड ग्रेजिंग तक हम कर सकते हैं। लैंड क्लास 6 मॉडरेट ग्रेजिंग, है ना, कुछ हम अच्छी तरह से पास्चर को डेवलप करके कर सकते हैं। देन 5 इंटेंस ग्रेजिंग, राइट। 4 में लिमिटेड कल्टीवेशन, 3 में मॉडरेट कल्टीवेशन, 2 में इंटेंस कल्टीवेशन एंड 1 में वेरी इंटेंस कल्टीवेशन। अगर लैंड क्लास 1 है तो उसमें खरीफ क्रॉप भी आएगा, रबी क्रॉप भी आएगा, अगर पानी मिलता है तो समर क्रॉप भी वहां आ सकता है। इतना सॉइल डेप्थ अच्छा है, सॉइल का टेक्सचर अच्छा है, लोमी सॉइल है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। सो आवर इंटरवेंशन शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द लैंड कैपेबिलिटी। जमीन की उगाने की क्षमता जितनी है उस अनुसार हम काम करें, तभी अपना इम्पैक्ट अच्छा दिखेगा, और वहां जो काम किया है, वहां जो हमने पैसा खर्च किया है वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा और कम्युनिटी को और उस एरिया को वो बेनिफिट देगा। एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत बार
और कुछ लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि आपने लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सिखाया, लेकिन इसको हम कैसे निकालेंगे, हर एक खेत के लिए कैसे निकालेंगे, या वहाँ 100 हेक्टेयर का फॉरेस्ट पैच है, अब वो 100 हेक्टेयर फॉरेस्ट पैच को हम लैंड क्लासिफिकेशन कैसे निकालें। तो उसका एक एग्जांपल मैंने दिया है। The land is classified into different capability classes according to each parameter with the help of rating table. The capability class will be the highest number given to any properties according to the severity of limitations. So इसमें 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है लैंड क्लास निकालने के लिए। 4 पैरामीटर्स आर हाईली इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है सॉइल टाइप, मिट्टी का प्रकार कौन सा है, राइट। अब इसमें आप अपनी भाषा में भी डाल सकते हो, अच्छी है, बुरी है, मध्यम है, या लोमी है, क्ले है, सैंड है, या ब्लैक है, रेड है, जो भी आप मिट्टी को समझते हो उसके अनुसार उसका सॉइल टाइप क्या है। देन सॉइल डेप्थ, मिट्टी की खोली, उसका डेप्थ कितना है, उसका रेंज होता है। हमें बिल्कुल वर्नियर कैलिपर लेके मेजर नहीं करना है। 45 का 46 हो गया डजंट मैटर, 50 हो गया डजंट मैटर, 80 हो गया डजंट मैटर। अगर 90 के ऊपर जाता है देन सॉइल डेप्थ हमारा बदलता है। सो इन वाटरशेड आप लोग ध्यान में रखो कि हम वी आर वर्किंग इन अ रेंज, है ना, क्योंकि सॉइल में एग्जैक्ट मेजरमेंट करके काम करना पॉसिबल नहीं है। अगर स्लोप हम बात करें कि 1.23% स्लोप पे हमें ये काम करना है, इट इज नॉट पॉसिबल। स्लोप में हम क्या करते हैं, रेंज पकड़ते हैं, 0 to 1%, 0 to 5%, 5 to 10%, 10 to 15%, बिकॉज वो इतना वेरिएशन वहां चलता है और इतना प्रैक्टिकली मेजर करना फील्ड में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें बहुत टाइम जाएगा और इट्स नॉट रिसर्च वर्क। सो रेंज डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सॉइल डेप्थ की भी रेंज में ही हमें काम करना है और स्लोप का भी रेंज में ही करना है। तो थर्ड पैरामीटर है स्लोप, एंड लास्ट पैरामीटर इरोजन लेवल, जिसको हम बोलते हैं E1। E1 मीन्स स्लाइट इरोजन, E2 मीन्स मॉडरेट, E1 से ज्यादा है तो E2 मीन्स मॉडरेट, E3 मीन्स सीवियर, बहुत ज्यादा गलीज बने हैं और ज्यादा पानी मिट्टी जा रहा है, और E4 मीन्स वेरी सीवियर। तो इस प्रकार से इरोजन का लेवल बढ़ता है, E1, E2, E3, E4। वैसे ही स्लोप का है, 0 to 1% मीन्स नियरली लेवल्ड, मीन्स स्लोप A, B मीन्स 2 to 5%, C मीन्स 5 to 8%। तो लाइक दैट वो भी बढ़ेगा। तो उसका भी टेबल मैंने आगे दिया है। तो इस प्रकार से ये 4 पैरामीटर अगर आप मालूम करेंगे तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। सो अब ये खेत की हम बात करें कि हम एक्स खेत में गए हैं तो वहां का सॉइल टाइप है लोम, है ना, तो उसका मैप पे सिंबल है 1 और लोम वो आता है लैंड कैपेबिलिटी क्लास 1 में। अभी हमने देखा कि लोमी सॉइल है तो उसका क्लास होता है 1। अब उसकी सॉइल डेप्थ है 45 to 90 सेंटीमीटर के रेंज में, तो ये D4 उसका सिंबल है। तो अगर डेप्थ 45 to 90 है तो वो 2 क्लास में जाएगी, है ना। सो उसका लैंड कैपेबिलिटी हो गया 2। स्लोप है 0 to 1%, मीन्स लेवल्ड है। लेवल्ड है तो हमने देखा लो क्लास 1 में लैंड इज लेवल्ड, तो अगेन उसका लैंड क्लास आ गया 1। और इरोजन है E1, मीन्स वेरी स्लाइट और निग्लिजिबल, तो उसका भी लैंड क्लास आ गया 1, जो हमने टेबल में सीखा। अब ये चारों में से हाईएस्ट कौन सा है, 1 2 1 1। अब ये चारों पैरामीटर में हाईएस्ट है 2, तो इस लैंड का क्लास हम बोलेंगे 2। सो इन दिस केस द हाईएस्ट वैल्यू इज 2, so the land capability class will be 2 and the mapping symbol would be 1 means soil type dash D4 oblique A means slope or dash erosion E1 will fall under this class। तो अगर हम इसको ऐसे डेप्यूट करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिखते वक्त लैंड क्लासिफिकेशन को हमेशा ऐसे ही लिखना है, 1 means soil type dash D4 means soil depth divided by स्लोप का सिंबल A डैश इरोजन का लेवल E1, और इसको क्लोज करें। अब इस चारों में हाईएस्ट लैंड क्लास है 2, तो इस जमीन का भी लैंड क्लास हो गया 2। इट्स सो सिंपल, बट ये बहुत बार हम काम करते वक्त ये जो हमें सिखाई गई चीजें होती है, जो कॉलेज में सीखते हैं, ट्रेनिंग में सीखते हैं, इसको बहुत बार हम अप्लाई नहीं करते।
एंड वाटरशेड में ये अप्लाइड रिसर्च बहुत जरूरी है। जो कुछ हमने सीखा है उसको हमें अप्लाई करना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है, उसके ऊपर काम करना है और उसके ऊपर डिफरेंट मॉडल्स डेवलप करने हैं। So this is all about the land capability classification. उसका एक टेबल आप रेफर कर सकते हो, अपने मैनुअल में भी है कि अगर A है तो कितना स्लोप होता है, B है तो कितना स्लोप होता है, C हो तो कितना स्लोप होता है। ये अपना जो वाटरशेड का मैनुअल है इसमें आपको सबका डिटेल्स मिल जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैंड क्लास वी नीड टू रेफर दिस टेबल्स। ये D5 है तो लैंड क्लास 5, अगर स्टीप है 15 to 15% स्लोप है तो लैंड क्लास 6, 25% के ऊपर स्लोप है तो लैंड क्लास 7 और बहुत ही ज्यादा है तो लैंड क्लास 8। तो ये दो टेबल को रेफर करते हुए हमें इस लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में ये सब चीजें डालनी है और उसके बाद लैंड का क्लास हमें निकालना है। सो पूजा, मुझे क्या लगता है यहाँ एक ब्रेक लेके क्वेश्चंस लेंगे लोगों के, फिर आगे बढ़ेंगे। इज दैट ओके? ठीक है सर। क्योंकि फिर स्ट्रक्चर शुरू हो जाएंगे तो थोड़ा लैंड क्लासिफिकेशन का अगर किसी का क्वेश्चन है तो दे कैन रिलेट इमीडिएटली। ओके, तो किसी का अगर कुछ क्वेश्चन है अभी तक जो सर ने कवर किया उसके ऊपर, तो प्लीज आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में डालिए या फिर चैट पे डालिए या फिर आपका हैंड रेस करिए, तो हम आपको बोलने का मौका भी देंगे। तो अभी तक जितना भी सर ने कवर किया उससे रिलेटेड आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर हम फिर जरा 1-2 मिनट रुकते हैं हाँ क्योंकि उनको शायद टाइप करने में थोड़ा हाँ टाइम। तो आप क्वेश्चन आंसर करके, आपको बॉक्स दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के नीचे, वहां पे आप आपका प्रश्न टाइप कर सकते हैं या फिर चैट करके एक बॉक्स दिख रहा होगा वहां पे भी आप अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं या फिर रेज हैंड कर सकते हैं। हम फिर हम आपको बोलने का मौका भी देंगे। सर शायद नहीं है किसी को हाँ क्वेश्चंस, तो हम आगे बढ़ते हैं सर। यस। सो वी कैन मूव ऑन। अभी हमने प्लानिंग का जो इम्पोर्टेंट टूल जो देखा है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन LCC, उसके आधार पे हमें वाटरशेड का प्लानिंग शुरू करना है। तो कौन सी एरिया में कौन सा काम करना है ये हमने देख लिया और ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सबको मालूम है, तो वी गो वन बाय वन। सो फर्स्ट इज द रिज लाइन ट्रीटमेंट, जिसको हम टॉप एरिया वाला पार्ट बोलते हैं, जहां से पानी का बहना शुरू हो जाता है, जहां स्लोप ज्यादा होता है, मिट्टी का सॉइल इरोजन का रेट ज्यादा होता है, पानी की वेलोसिटी ज्यादा होती है, वहां हमें सबसे पहले काम करना है। सो रिज लाइन में हम क्या करते हैं, अगर लैंड क्लास 5, 6, 7, 8 CCT हमें लैंड क्लास 1 to 4 में नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखें, CCT अगर आप प्रपोज कर रहे हो, प्लांटेशन अगर आप प्रपोज कर रहे हो, तो लैंड क्लास शुड बी अबव 5, 6, 7 यू कैन गो फॉर CCT। 8 में तो CCT भी नहीं करना है, 8 में सिर्फ सीड सोइंग करना है। सो ये ट्रायंगुलेशन सब लोग ध्यान में रखें कि एक तरफ आप नेट प्लानिंग के फॉर्मेट में लिख रहे हो लैंड क्लास 3 और आगे डाल रहे हो CCT, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। सो लैंड क्लास 3 है तो दैट इज अ क्रॉप कल्टीवेशन एरिया
वहां आप फार्म बंडिंग कर सकते हो, वहां आप रिपेयर ऑफ फार्म बंड कर सकते हो, वहां आप आउटलेट कर सकते हो, वहां आप एग्रो हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, वहां आप सीसीटी नहीं कर सकते. So land class 1 to 4 are strictly prohibited for CCT. CCT, RCT अगर करना है, staggered contour trench करना है, तो land class should be 5, 6 और some part of 7. 8 में भी हमें CCT propose नहीं करनी है, because 8 land class is almost reserved for forest. It is having slope more than 25%, where we cannot go for CCT also. सो पहला जो रिजलैंड ट्रीटमेंट है जो पहाड़ों से शुरू होता है, वो पहाड़ों का स्लोप हमें निकालना है, पहाड़ की मिट्टी का डेप्थ हमें देखना है 3-4 जगह पे, स्लोप भी 2-3 जगह का देख के एवरेज स्लोप निकालना है, मिट्टी का डेप्थ 2-3 जगह देख के मिट्टी का डेप्थ निकालना है, इरोजन का स्टेटस लिखना है. अगर वहां बहुत ज्यादा इरोजन है तो E3 आएगा, मॉडरेट है तो E2 आएगा. इस प्रकार से वो डेप्थ, स्लोप, इरोजन और सॉइल का टाइप, ये देखते हुए हमें सॉइल लैंड का क्लास डिसाइड करना है और उसके बाद हमें ट्रीटमेंट प्लान करना है. सो रिज लाइन में जनरली लैंड क्लास 5, 6, 7 आता है. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्लोइंग डाउन द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ. तो चेकिंग सॉइल इरोजन एंड इंप्रूविंग लोकल सॉइल मॉइस्चर प्रोफाइल. सो ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ये वेस्ट लैंड है ना. यहाँ स्लोप भी 6-7%, 8% के आसपास स्लोप आपको दिख रहा है. अगर ये स्लोप वेस्ट लैंड पे अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इन कमिंग ईयर्स 2-3 साल में यहाँ जितनी मिट्टी दिख रही है, ये मिट्टी सब बह के चली जाएगी. एवरी ईयर ये पूरा बारिश के साथ ये मिट्टी चली जाएगी, है ना. और ये मिट्टी चली जाएगी तो ये पूरा पोर्शन ओपन हो जाएगा एंड फिर यहाँ कुछ भी कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होगा. सो फिर इस लैंड क्लास में हम क्या करेंगे कि ये जो सीसीटी आपको दिख रही है, पूरा ट्रेंचेस, स्टैगर्ड कंट्रोल ट्रेंचेस किए हैं. तो यहाँ जो पानी बहेगा, ये पूरा पानी इस पिट्स में रुकेगा. यहाँ रुकने के बाद उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा. फिर ये जब भरेगा तब पानी नीचे से दूसरे लेवल पे आ जाएगा. तो ये मिट्टी को, इस वाले कैचमेंट की मिट्टी को यही रोकेगा, इस वाले कैचमेंट की मिट्टी को यही रोकेगा, इस वाले कैचमेंट की मिट्टी को यही रोकेगा. पानी का वेलोसिटी कम हो जाएगा और फिर यहाँ हम प्लांटेशन ग्रास लगा के यहाँ पे हम अच्छा बैरियर, वेजिटेटिव बैरियर खड़ा करेंगे एंड दिस विल प्रोटेक्ट द एंटायर वेस्ट लैंड. और धीरे धीरे ये वेस्ट लैंड पूरा प्रोडक्टिव एसेट में बन जाएगा. अगर यहाँ हम ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर करेंगे, कस्टर्ड एप्पल लगाएंगे या आंवला लगाएंगे, पानी की सुविधा हो तो मैंगो लगाएंगे, तो ये वेस्ट लैंड पूरा अपना कल्टीवेशन में आ जाएगा एंड फार्मर को एडिशनल इनकम देगा. और ये जो लैंड क्लास डिटोरिएट हो रहा था, हर साल ये जो मिट्टी यहाँ की बह के जा रही है, इसको हमें ऊपर से ही नीचे कंट्रोल करके लाना है. और ये जो बाजू वाली गली आपको दिख रही है, इस गली में हमें गली प्लग, लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर्स प्लान करने हैं, so that entire upper catchment will be treated very scientifically, very rigorously. अगर हमें अच्छे तरह से ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर अगेन मिट्टी का बहना पानी के साथ ये शुरू रहेगा. ये कहाँ कर सकते हैं हम? So if the slope is more than 25%, do not make contour trenches. ये जो स्लोप है, स्लोप, इसको हम स्लोप बोलते हैं. ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट जो हमने पॉइंट ए देखा, ये हो गया लोएस्ट पॉइंट, पॉइंट बी देखा. यहाँ का लेवल कितना है, यहाँ का लेवल कितना है, दो लेवल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना आता है, ये बोलते हैं इसका स्लोप. अगर ये स्लोप 25% के ऊपर है तो यहाँ हमें ट्रेंचेस नहीं करने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा स्लोप रहेगा, दो ट्रेंच का डिस्टेंस बहुत क्लोज आ जाएगा और वहां ट्रेंच करना इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल नहीं होगा और वहां मिट्टी भी नहीं रुकेगा. क्योंकि ज्यादा स्लोप है तो ये जो एक्सकेवेटेड सॉइल है, हमने यहाँ जो एक्सकेवेटेड सॉइल निकाली है ये वाली, अगर यहाँ स्लोप कम है इसलिए यहाँ सॉइल रुकी है. अगर ये स्टीप स्लोप होगा तो ये मिट्टी फिर नीचे बह के आ जाएगी, ये मिट्टी फिर नीचे बह के आ जाएगी. तो जैसे खोदेंगे वो मिट्टी इस नीचे वाले ट्रेंच में चले जाएगी. सो स्लोप अगर 25% के ऊपर है तो कोई भी ट्रेंचिंग नहीं करना है, सब लोग ध्यान रखें. If the slope is less than 10%,
डू नॉट मेक कंटूर ट्रेंचेस, है ना। सो 10% के ऊपर और 25% के बीच में है तभी हमें कंटूर ट्रेंचेस करना है। 10% के नीचे है तब हम फार्म बंडिंग कर सकते हैं, है ना, उस लैंड को हम कल्टीवेशन में ला सकते हैं। तो ये थोड़ा परसेंटेज सब लोग ध्यान में रखो। और इफ द स्लोप इज बिटवीन 10 to 25%, मेक अ कंटूर ट्रेंच। कंटूर ट्रेंच के लिए फिजिबल है कि लैंड का स्लोप 10 to 25% के बीच में हो, तभी हम कंटूर ट्रेंच करें। लेस देन 10% हो, then we should go for farm bunding, contour bunding, graded bunding। और 25% के ऊपर हो तो वहां कुछ भी नहीं करना है, वहां जस्ट सीड सोइंग करना है, प्लांटेशन करना है और उस फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, ग्रेजिंग प्रोटेक्ट करके उसको नेचुरल वेजिटेशन पे छोड़ देना है। कंटूर ट्रेंच करते वक्त हमें 2-3 चीजें बहुत ध्यान में रखनी है कि उसका लेआउट हम कैसे देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, आप पढ़ भी सकते हो। डू नॉट मेक ट्रेंचेस ऑन स्लोप हायर देन 25%, इंस्टेड अडॉप्ट वेजिटेटिव मेजर्स। अगर 25% के ऊपर स्लोप जा रहा है तो वहां ट्रेंचेस मत करो। ट्रेंचेस करने के कारण वहां इरोजन ज्यादा हो सकता है, तो वहां सिर्फ आप वेजिटेशन अप्रोच पे जाओ, वहां आप अगेव प्लांटेशन कर लगाओ, वहां आप एलोवेरा प्लांटेशन करो, वहां आप ग्रास सीडिंग करो, वहां आप सीड सोइंग करो, बॉल में डाल के सीड सोइंग का यूज कर सकते हो। सो जस्ट गो फॉर द वेजिटेटिव मेजर्स। डू नॉट मेक ट्रेंचेस ऑन स्लोप लेस देन 10%। 10% से नीचे है तो वहां भी ट्रेंचेस नहीं करना है, वहां आप फार्म बंड पे चले जाओ, सो दैट लैंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द क्रॉप कल्टीवेशन। Do not excavate trenches where there is already dense vegetation। अगर किसी पैच में यहाँ बहुत अच्छा प्लांटेशन है तो उस प्लांटेशन में ट्रेंचिंग मत करो। ट्रेंचिंग करने से वहां का प्लांटेशन, वहां का नेटिव डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वहां आपको कुछ भी नहीं करना है। वहां सिर्फ स्टोन का प्लगिंग करो, गली प्लगिंग करो, स्टोन का बंडिंग करो जहां जहां पॉसिबल है, लेकिन वहां ट्रेंचिंग करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट प्लांट इनसाइड द ट्रेंच। जहां हमने ट्रेंच खोदा है, ट्रेंच के बीच में प्लांट मत लगा। ट्रेंच की जो मिट्टी निकाली है वो मिट्टी के ऊपर पौधा लगाना है, ट्रेंच के बीच में नहीं लगाना है। बहुत बार लोग ट्रेंच के बीच में यहाँ पौधा लगाते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए है कि अच्छी मिट्टी हमने निकाली है, वहां पूरा हार्ड रॉक आया है और वहां पौधा लगाएंगे तो सर्वाइव नहीं होगा। तो ये ट्रेंच की जो मिट्टी खोदी है उस मिट्टी के ऊपर हमें बीज या पौधा लगाना है। डू नॉट एक्सकेवेट ट्रेंचेस अक्रॉस लार्ज स्ट्रीम्स और ड्रेनेज लाइंस। अगर वेस्ट लैंड में कहीं से ड्रेनेज लाइंस जा रही है या स्मॉल गली जा रही है, उस गली में ट्रेंचेस को नहीं खोदना है, राइट। और कैसे काम करना है, तो ये वाला पैच है, अपर वाला वो एरिया है, रिज लाइन है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे कि मैक्सिमम स्लोप इतना है, मिनिमम स्लोप इतना है, इधर मिनिमम स्लोप इतना है, तो एवरेज स्लोप इतना है इस लैंड का। फिर एक बेस लाइन डालेंगे, ये बी जो लिखा है ये बेस लाइन है सेंटर से, और ये बेस लाइन डालने के बाद अपने पास एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल है। अगर लैंड का स्लोप ज्यादा है तो 2 ट्रेंच का अंतर कम होता है, और लैंड का स्लोप बहुत ही कम है तो इसका अंतर बढ़ता है, राइट। अब 15% स्लोप है तो ये 8 मीटर 6 मीटर पे 2 ट्रेंचेस आएंगे, राइट। अब जैसे ही स्लोप 10% पे आएगा तो ये दोनों का डिस्टेंस बढ़ेगा। सो ये इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल इंटरवल। ये 2 लाइन का डिस्टेंस जो हमने सीखा, ये लाइन और ये लाइन, ये 2 लाइन का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल इंटरवल। तो ये फिक्स है, इसका टेबल रेडी है, आपको कैलकुलेशन करके भी आ सकता है। तो ये बेस लाइन हम डालेंगे और बेस लाइन पे मार्क करेंगे पॉइंट। 6 मीटर पे हमें कंटूर करना है तो 6 मीटर पे हम कंटूर, इधर एक कंटूर मार्क कर लिया, फिर ये कंटूर इधर इस दिशा में चला गया, फिर दूसरा 6 मीटर का पॉइंट आ गया, फिर ये कंटूर हमने मार्क किया ए फ्रेम और हाइड्रो मार्कर की मदद से, और ये कंटूर फिर इधर यहाँ तक चला गया। फिर तीसरा पॉइंट है, फिर यहाँ से हमने ये कंटूर मार्क किया और ये कंटूर यहाँ चला गया। So with the help of hydro marker of A frame or the level, you can mark the contours in both directions from base level. इसको बोलते हैं बेस लेवल। तो इससे हम कंटूर्स को मार्क करें और फिर इस कंटूर के ऊपर
इस कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए ट्रेंचेस करेंगे और उस मिट्टी जो ट्रेंच की मिट्टी आएगी उसके ऊपर हम प्लांटेशन और सीड सोइंग करेंगे। ये है कंटिन्यूअस और ये है स्टैगर्ड। दोनों के बीच में इतना ही फर्क है, ये स्टैगर्ड में 2 ट्रेंच के बीच में गैप रखा है और नीचे वाला जो ट्रेंच है दोनों के बीचों बीच रखा है। ये 2 ट्रेंच है, इसमें गैप है, ये गैप वाला पानी ये बीच वाली ट्रेंच पकड़ेगा। तो स्टैगर्ड है, इसमें अल्टरनेट ट्रेंचेस होते हैं और ये कंटिन्यूअस है। जहां रेनफॉल कम है वहां स्टैगर्ड ट्रेंचेस हम प्रेफर करते हैं, जहां रेनफॉल ज्यादा है वहां हम कंटिन्यूअस ट्रेंचेस प्रेफर करते हैं। वेजिटेशन ज्यादा है तभी हम स्टैगर्ड ट्रेंचेस पे जा सकते हैं। एक थोड़ा मैंने स्टेप्स दिया है कि हमें डिजाइन करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो ये सब चीजें हम क्यों करते हैं? क्योंकि रन ऑफ को हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। रन ऑफ मीन्स जो कैचमेंट से बहने वाला पानी, क्यू, जिसे हम क्यू बोलते हैं, क्वांटम ऑफ रन ऑफ, which is equal to C into R into A. C means coefficient of runoff, R means daily rainfall in a meter, and A means area taken up for a design in square meters. कितने एरिया का पानी आ रहा है, कितना बारिश हो रहा है उस एरिया पे, और कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ। कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ मीन्स समझो बारिश, ऊपर से बारिश आया और उसको हमने कैच किया, 100 बाल्टी बारिश आ गया और उसमें से 40 बाल्टी पानी बह गया और 60 बाल्टी पानी नहीं बह गया, तो जमीन में चला गया 60 बाल्टी, सिर्फ 40 बाल्टी पानी बह गया। तो 40 डिवाइड बाय 100 ये जो आएगा उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ। सो जमीन में पानी जाने के बाद, स्ट्रक्चर में पानी कैच करने के बाद जो पानी बह के निकल जाता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ हम बोलते हैं। तो ये क्यू को हम निकाले सबसे पहले। कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ की वैल्यू लैंड का जो टाइप है उसके अनुसार बदलती है। अगर डेंस वेजिटेशन है तो वहां पानी कम बहेगा, अगर वहां कुछ भी वेजिटेशन नहीं है तो पानी ज्यादा बहेगा, क्योंकि पानी को रोकने वाला वहां पेड़ नहीं है, वहां घास नहीं है, वहां पत्थर नहीं है। तो लैंड का जो टाइप है उसके अनुसार कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ की वैल्यू होती है। कल्टीवेशन लैंड का कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ का वैल्यू अलग है, फॉरेस्ट का अलग है, डेंस फॉरेस्ट का अलग है, वेस्टलैंड का अलग है। तो ये पूरा टेबल में आपको मिलेगा, उसको रेफर करते हुए यू कैन कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ। देन उस रन ऑफ को रोकने के लिए हमें कितने ट्रेंचेस करने पड़ेंगे, ये इसका वॉल्यूम हमने निकाला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, कि इतने लेंथ का ट्रेंच करेंगे उसका विड्थ इतना होगा, हाइट इतना होगा, तो इतना वॉल्यूम पानी उस ट्रेंच में रोकेगा। फिर तीसरा स्टेप है फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द कंटूर ट्रेंचेस। तो लेंथ हम कैसे निकाले, नंबर ऑफ ट्रेंचेस इनटू लेंथ। 2 का डिस्टेंस कैसे निकाला अभी मैंने बताया आपको। द डिस्टेंस डी बिटवीन 2 सक्सेसिव रोज ऑफ कंटूर ट्रेंचेस इज A डिवाइड बाय L। A मींस एरिया और L मींस टोटल लेंथ ऑफ द कंटूर ट्रेंचेस। सो ये जो कुछ टेक्निकल बेसिक थंब रूल्स है, बेसिक नॉर्म्स है, अगर कोई पूछता है आपको कि आपने 600 रनिंग मीटर CCT क्यों प्रपोज किया, तो इसका जवाब देने के लिए हमें ये पूरा बैकवर्ड इंफॉर्मेशन हमारे ध्यान में रखना जरूरी है कि इस एरिया में बारिश इतना आता है, ये बारिश रोकने के लिए इतना 600 मीटर का अगर हम ट्रेंच करेंगे तो बहने वाला बारिश उस 600 मीटर ट्रेंच में कैच हो जाएगा। अगर हम 200 मीटर करेंगे तो 200 मीटर का ही पानी रुकेगा, बाकी का पानी निकल जाएगा। 800 मीटर करेंगे तो उतना पानी नहीं रुकेगा। मीन्स वो ओवर साइज भी नहीं होना चाहिए, वो अंडर साइज भी नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर इतना ही होना चाहिए कि जो बहने वाले पानी को अवेलेबल रन ऑफ को उसको रोकने की क्षमता उसमें हो। इसीलिए हम जब प्लान एस्टिमेट पे डालते हैं, बहुत बार अभी प्रेजेंटेशन में मैं देखता हूं कि CCT 100 क्यूबिक मीटर डाला है, प्रपोजल में डाला है, प्रेजेंटेशन में डालते हैं, और कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 100 क्यूबिक मीटर कैसे आया, तो हमारे पास कोई जवाब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। तो ये जवाब हमारे पास हमेशा होना चाहिए, 100 क्यूबिक मीटर क्यों, 800 मीटर क्यों, 600 मीटर क्यों। तो उसका लॉजिक ये है कि जो बहने वाला पानी की क्वांटिटी हम निकालते हैं
उस क्वांटिटी को कैच करने वाला वॉल्यूम हम निकालते हैं, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। उस वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए हम नंबर ऑफ ट्रेंचेस निकालते हैं, फिर 2 ट्रेंच का डिस्टेंस हमारे पास मालूम है, और देन वी कैन से कि इस एरिया के लिए 600 मीटर सीसीटी पर्याप्त है। बहने वाले पानी को रोकने के लिए, मिट्टी को रोकने के लिए 600 मीटर सीसीटी पर्याप्त है। या 1000 मीटर सीसीटी करने की जरूरत नहीं है। 1000 मीटर करेंगे तो वो ओवर डिजाइन होगा, 200 मीटर करेंगे अंडर डिजाइन होगा, लेकिन अगर 550 टू 600 के बीच में करेंगे, सो दैट इज अ प्रॉपर डिजाइन based upon the calculation of water availability, considering the runoff factor and availability of water to stored for the water conservation and for the soil in situ moisture conservation for that regime. तो ये लोग सब ध्यान में रखो, इसकी भी सब लोगों को प्रैक्टिस करना है। कोई भी फिगर डालते हो उसका क्यों का जवाब हमारे पास चाहिए। ऐसा नहीं कि 200 मीटर डाल दो, बजट है, 500 मीटर डाल दो, 1000 मीटर डाल दो, लेकिन उसके बैक कैलकुलेशन कैसे आते हैं ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। सेम वे इज एप्लीकेबल फॉर फार्म बंड आल्सो। जैसे हमने सीसीटी में देखा, अगर 2 फार्म बंड के डिस्टेंस कोई वेस्ट लैंड पड़ा है और हमें कोई बोलता है कि इस पड़ी जमीन में, ये वेस्ट लैंड में कंट्रोल बंडिंग करना है क्योंकि स्लोप 6% है। अब स्लोप 6% है तो वहां ट्रेंचिंग नहीं होगा, हमने अभी सीखा। 10 to 20%, 25% है तभी हमें ट्रेंचिंग करना है, 10% के नीचे है तो हमें बंड्स करना है। तो किसी भी जमीन का अगर स्लोप 6% है तो कंट्रोल बंडिंग करना है, तो 2 कंट्रोल बंड का डिस्टेंस कितना आना चाहिए, उसका एक एग्जांपल मैंने दिया है, या प्रेजेंटेशन में भी देख सकते हो। यू कैन रीड आल्सो, यू कैन कैलकुलेट आल्सो, और इसको ध्यान में रखते हुए आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आसानी से निकाल सकते हो कि 2 बंड का डिस्टेंस 20 मीटर हमें रखना है। ऊपर का बंड आएगा, फिर 20 मीटर हॉरिजॉन्टल इंटरवल पे नीचे का बंड आएगा, फिर और 20 मीटर पे नीचे का बंड आएगा। अगर ऐसा आप कंट्रोल बंड का प्लानिंग करोगे तो वहां ना इरोजन होगा, मॉइस्चर कंजर्वेशन एकदम बराबर होगा, ओवर डिजाइन नहीं होगा, अंडर डिजाइन नहीं होगा, अपना पर्पस साइंटिफिकली सॉल्व हो जाएगा। सो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटरवल। तो मैंने आपको पहले फॉर्मूला में सिखाया था, वर्टिकल इंटरवल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल इंटरवल इनटू 100 इज इक्वल टू स्लोप। तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 0.3 इनटू एस, एस मीन स्लोप, डिवाइड बाय ए प्लस बी आर कांस्टेंट जिसका वैल्यू 3 और 2 है। यहाँ सिर्फ हमें स्लोप डालना है, यस मीन स्लोप। अब हमने स्लोप का वैल्यू डाल दिया तो वर्टिकल इंटरवल मिल गया, आपने वर्टिकल इंटरवल आ गया 1.2 मीटर। अब हॉरिजॉन्टल इंटरवल कैसे निकालना है, वर्टिकल इंटरवल डिवाइडेड बाय स्लोप इनटू 100। वर्टिकल इंटरवल निकाला है 1.2 डिवाइड बाय स्लोप आया है 6 इनटू 100 इक्वल टू 20 मीटर। सो 20 मीटर हमारा 2 बंड का डिस्टेंस डिसाइड हो गया। अब ऐसा ही हम डिस्टेंस डिसाइड हो गया, लेंथ हो गया, तो हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, इतना क्यूबिक मीटर का काम हो जाएगा। फिर उसके लिए ये रेट होगा, उसके बाद हम उसका बजट पार्ट भी निकाल सकते हैं। सो फार्म बंड प्लान करते वक्त हमें वहां का इन्फिल्ट्रेशन कैसा है, रेनफॉल कैसा है, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। और हमेशा सब लोग जनरली एक थंब रूल ध्यान में रखो कि खेत में हमें सिर्फ 1 फीट का पानी रोकना है, 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, है ना। सो इम्पाउंडिंग ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर बाय ईच बंड, ये हमें ध्यान में रखना है। 30 सेंटीमीटर पानी रोकने के बाद जो भी लेवल पानी का बढ़ेगा वो आउटलेट से पानी खेत में से बाहर निकलना है। तो हमारा बंड का डिजाइन इम्पाउंडिंग डेप्थ 30 सेंटीमीटर को ध्यान में रखते हुए करना है। एक्सेस जो वाटर है उसको हमें आउटलेट की मदद से, स्टोन आउटलेट की मदद से, ग्रास आउटलेट की मदद से उसको बाहर निकालना है। एक एग्जांपल दिया है, डिजाइन सुटेबल हाइट ऑफ बंड इफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो दिया है, मैक्सिमम 24 आवर रेनफॉल फॉर 10 इयर्स ऑफ रिकर्स इंटरवल इज 12 सेंटीमीटर। सो इट्स अ टेक्निकल डिजाइन रखा है। आप ये प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा सबको, तो आप ये सब वैल्यू डाल के रेनफॉल इतना है, इन्फिल्ट्रेशन इसका 30 सेंटीमीटर दिया है, सो ये अवेलेबल रेनफॉल इतना है, देन हाइट ऑफ बंड कैसे निकालते हैं, आर इनटू वर्टिकल इंटरवल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस
2.5, तो इसमें फ्री बोर्ड ऐड किया है हमने, फिर 10% सेटलमेंट अलाउंस ऐड किया है और हाइट ऑफ द बंड निकाला है। तो हाइट ऑफ द बंड कैसे रखना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बंड्स कैसे निकालना है, ये सब चीजें हमें वाटरशेड में डिजाइन करते वक्त ध्यान में रखना है। और जो हम VI और HI सीख रहे थे, ये देखो ये है पहला बंड और ये है दूसरा बंड, राइट। अब ये दो बंड का जो VI दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल इंटरवल है। सो ये डिस्टेंस, ये यहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल, ये दोनों का खड़ा डिस्टेंस है, इसको VI बोलते हैं। और ये दोनों का ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसको HI बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ ये बंड के पीछे जो दिया है स्टोर्ड वाटर, तो यहाँ सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक का ही पानी रोकना है, जिसके बाद वाला पानी हमें आउटलेट से बाहर निकालना है। इतना ही पानी वहां मॉइस्चर कंजर्व करेगा और इसमें किसान रबी का क्रॉप ले सकते हैं, सेकंड क्रॉप ले सकते हैं। सो ये 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है एरिया ट्रीटमेंट प्लान करते वक्त, कि लैंड क्लास क्या है, नंबर 1, नंबर 2 CCT करना है, SCT करना है, प्लांटेशन करना है, ये क्या करना है, नंबर 2, नंबर 3 फार्म बंडिंग करना है या रिपेयर ऑफ फार्म बंडिंग करना है, और नंबर 4 सिर्फ वेजिटेटिव बैरियर करना है। ये सब को हम बोलते हैं एरिया ट्रीटमेंट मेजर्स, जो खेतों में चीजें करते हैं उसको एरिया ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इंटरवेंशन इन द ड्रेनेज लाइन। जो नाला में हम काम करते हैं, ड्रेन में काम करते हैं, तो वहां क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सो वेयर लोकल बेड स्लोप, अभी हमने खेतों के स्लोप की बात की, अभी हम नाला के स्लोप की बात कर रहे हैं, है ना। वेयर द लोकल बेड स्लोप आर अबाउट 20% एंड वेयर थिनिंग ऑपरेशंस यील्ड्स एडिक्वेट रॉ मटेरियल, ब्रशवुड चेक। मीन्स ब्रशवुड डैम जो हम बात कर रहे थे कि गली 1 है, स्ट्रीम ऑर्डर 1 है और वहां स्लोप कम है और वहां नेचुरल वेजिटेशन अच्छा है, तो वहां ब्रशवुड चेक्स भी कर सकते हो। वेयर लोकल बेड स्लोप्स आर बिटवीन 5 to 20% एंड बोल्डर्स आर अवेलेबल, अगर पत्थर अवेलेबल है तभी हमें वहां गली प्लग और लूज बोल्डर करने हैं। पत्थर परचेस करके गली प्लग लूज बोल्डर नहीं करने हैं। आप बोलोगे सर आपने बोला था कि गली ट्रीटमेंट करना है, वहां पे स्लोप ज्यादा है और पत्थर आप बहुत दूर से पत्थर परचेस करके ला रहे हो, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। वहां फिर अर्दन गली प्लग करो, वहां मिट्टी के गली प्लग करो, जिसमें सिर्फ पिचिंग के लिए पत्थर का यूज करो, बाकी मिट्टी का यूज करो। सो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस ध्यान में रखना है। ये सब प्लानिंग प्रोसेस में पत्थर अवेलेबल है, देन यूज पत्थर फॉर गली प्लग, स्टोन बंड और LBS। अगर पत्थर नहीं है, यूज मिट्टी, यूज सॉइल फॉर अर्दन गली प्लग और फॉर सॉइल बंड और ट्रेंचिंग, है ना। अगर वेजिटेशन अच्छा है, यूज वेजिटेशन फॉर क्रिएटिंग ऑब्स्टैकल्स। सो अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेस का ध्यान में रखते हुए हमें ट्रीटमेंट को प्लान करना है। और वेयर लोकल बेड स्लोप आर लेस देन 5%, वहां आप बड़े स्ट्रक्चर कर सकते हो, जिसको हम चेक डैम बोलते हैं, अर्दन नाला बंड बोलते हैं, पर्कुलेशन टैंक बोलते हैं। तो वहां स्लोप 3% और 5% से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर स्लोप कम होगा तभी पानी ज्यादा लंबी मात्रा तक रुकेगा। अगर स्लोप ज्यादा होगा और यहाँ हम बंद डालेंगे बहुत बड़ा, लेकिन स्लोप बहुत ज्यादा है, तो पानी यहीं जाके रुक जाएगा। तो यहाँ स्ट्रक्चर पे हम 10 लाख खर्च करेंगे, लेकिन पानी बहुत ज्यादा लंबाई तक नहीं रुकेगा। इसलिए जितना नाला बेड स्लोप ज्यादा हो, उतना हमें स्ट्रक्चर इफेक्टिवली प्लान करना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें ड्रेनेज लाइन इंटरवेंशंस प्लान करते वक्त ध्यान में रखनी है। ये कुछ फोटोग्राफ्स में अभी दिखाता हूं, मैसनरी फील्ड आउटलेट्स। बहुत बार खेतों में इतना बड़ा ड्रॉप होता है कि बहुत गली बन जाती है, किसान का प्राइवेट खेत है बट एक नाला ही बना है। अब इस नाला पे अगर सिर्फ आप पत्थर लगाओगे तो वो विथस्टैंड नहीं करेंगे प्रेशर को, पानी का प्रेशर, मिट्टी का प्रेशर, वो टूट जाएगा। तो ऐसी केस में आपको परमानेंट आउटलेट्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसको हम मैसनरी फील्ड आउटलेट बोलते हैं। ये भी एक मैसनरी फील्ड आउटलेट का टाइप है, ये भी मैसनरी आउटलेट है, ये भी मैसनरी आउटलेट है। ये क्या करेगा, बड़ी गली बन गई है तो यहाँ फिर ये मिट्टी को रोकेगा, इसका इरोजन कम करेगा, पानी को रोकेगा, और इसके पीछे फिर किसान आराम से अपनी खेती
कर पाएगा। ये सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर गली कंट्रोल जो हमने बात की कि यहाँ पत्थर अवेलेबल थे, तो ये सीरीज में करना बहुत जरूरी है। इसका बॉटम और इसका टॉप एक लाइन में मेंटेन करते हुए हमें ये गली को हम ऊपर से नीचे तक अगर ट्रीट करेंगे तो ये गली का वाइडनिंग और डिपनिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर हम नहीं करेंगे तो ये गली का डेप्थ भी बढ़ेगा, गली का विड्थ भी बढ़ेगा, फिर ये गली नाला में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर यहाँ से पूरा पानी बह के ये पूरा इरोजन बढ़ेगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमें सीरीज में गली कंट्रोल मेजर्स को प्लान करना है। स्टोन गली प्लग्स इसको हम बोलते हैं, ये स्टोन बंड है। देखो अब इस एरिया में काफी मात्रा में पत्थर अवेलेबल थे। अब यहाँ पत्थर अवेलेबल थे तो यहाँ मिट्टी का बांड करने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पूरे पत्थर इकट्ठा करके पत्थर का बंड तैयार किया है, विच इज मोर स्टर्डी, मोर स्ट्रॉन्ग। और यहाँ फिर किसान जो पहले खेती नहीं कर पाता था, अब वो खेती करने के लायक जमीन बन गई है, क्योंकि यहाँ हमने पत्थर को पूरे एरिया से जमा करके उसको पत्थर को बंड में कन्वर्ट कर दिया है, और एक्सेस वाटर यहाँ से निकल जा रहा है बंड में से, और पीछे किसान एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कर सकता है। ये गैबियन स्ट्रक्चर है। बिफोर यहाँ कुछ नहीं होता था, मीन्स ये पूरा इरोजन होके पूरा मिट्टी बह के जाती थी। जैसे गैबियन बन गया, नेक्स्ट ईयर यहाँ किसान ने खेती करना शुरू कर दिया। सो इतना जो लैंड वेस्ट जा रहा था, एक तो वेस्ट जा रहा था, नंबर 2 यहाँ से मिट्टी बह के जा रही थी, पानी बह के जा रही थी, गली बन रहे थे। ये स्ट्रक्चर करने के कारण गली कंट्रोल हो गया, मिट्टी का बहना बंद हो गया, इरोजन कंट्रोल हो गया, और ये पूरा पैच कल्टीवेशन में आ गया। ये पर्कुलेशन टैंक है बिफोर आफ्टर। इस कल्टीवेशन टैंक जैसे हमने बोला कि यहाँ स्लोप कम होना चाहिए, अब स्लोप कम है इसलिए पानी ज्यादा लंबाई तक रुक गया है। यहाँ हम मिट्टी का बंड डालते हैं, इसका टेक्निकल डिजाइन का अलग वेबिनार हम लेंगे, ऑलरेडी कुछ टीम के लिए हमने लिया है। डिजाइन ऑफ अर्दन नाला बंड का एक सेपरेट वेबिनार लेंगे, डिजाइन ऑफ परमानेंट चेक डैम का सेपरेट लेंगे, बिकॉज दैट विल टेक अनदर 2-3 आवर्स सेपरेटली। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है कि प्लानिंग ऑफ इंटरवेंशंस है ना, सो प्लानिंग करते वक्त क्या टेक्निकल चीजें ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में नहीं रखना है, ये सब चीजें आज हम बात करेंगे। ये है चेक डैम स्ट्रक्चर्स, लास्ट वाला गेट। इसमें भी बहुत सारे टाइप है, गेटेड स्ट्रक्चर है, नॉन गेटेड स्ट्रक्चर है, ओवरफ्लो स्ट्रक्चर है। सो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हम एरिया में प्लान कर सकते हैं। ये हमें अगेन गली ऑर्डर 3 जिसको हम बोलते हैं 3 और 4 के ऊपर हमें इसको काम करना है। ये फार्म पॉन्ड्स है, सभी अभी हम प्रोजेक्ट में कर ही रहे हैं। दिस इज मेड फॉर प्रोटेक्टिव इरिगेशन, पानी को रोकना है, रिचार्ज करना है, फिशिंग के लिए करना है। ये लाइवलीहुड बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और प्लानिंग करते वक्त हमें यह भी ध्यान रखना है कि उस वाटरशेड में, उस विलेजेस में अगर पुराने स्ट्रक्चर्स है तो उसको रिवाइव करने का प्लान हमें सबसे पहले करना है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि नए स्ट्रक्चर करने के चक्कर में हम पुराने स्ट्रक्चर की ओर ध्यान नहीं देते, और थोड़ा कॉस्ट लगाने के कारण वो स्ट्रक्चर पूरा यूज में आ सकता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि गेट पूरे टूट गए थे, बाकी स्ट्रक्चर इंटैक्ट था। अभी गेट के ऊपर हमने काम किया तो पूरा स्ट्रक्चर यूज में आ गया। तो जस्ट इन्वेस्टिंग 60 to 80,000, ये पूरा 8-9-10 लाख का जो स्ट्रक्चर वेस्ट पड़ा था कई सालों से, वो काम में आ गया। तो वाटरशेड टीम को, एनआरएम टीम को प्लानिंग करते वक्त एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस क्या है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, उसका स्टेटस क्या है, डिफंक्ट है, पार्शियली डिफंक्ट है, फुल्ली डिफंक्ट है, सिल्टेड है, तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। एंड स्ट्रक्चर प्लान करते वक्त वहां का बाकी चीजें भी देखनी है कि ड्रेनेज वेल डेंसिटी कैसा है। अगर एक चेक डैम कर रहे हैं और चेक डैम के बाजू में एक भी कुआं नहीं है तो वो चेक डैम में पानी रुकेगा, जमीन में जाएगा, बट वो डायरेक्ट किसानों को बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ इस चेक डैम के नीचे इधर 3-4 वेल्स है, इधर 3-4 वेल्स है। अगर हम यहाँ चेक डैम करेंगे, वहां अगर स्टाटा अच्छा है,
किसान भी तैयार है और यहाँ चेक डैम होगा तो ये 8-10 वेल को रिचार्ज करेगा। तो उसी पॉइंट पे हमें चेक डैम को प्लान करना है, ना कि आइसोलेशन में कहीं चेक डैम कर दिया, वहां का रिचार्ज किसी को भी नहीं हो रहा है, पानी रुक गया और पूरा इवापोरेशन लॉस की तरफ से निकल गया। तो ये भी हमें अवॉइड करना है। सो रिवाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर कॉस्ट पर्सपेक्टिव एंड स्ट्रक्चर का रिवाइवल भी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में, प्लानिंग प्रोसेस के बारे में था। सो अब तक के टॉपिक पे जो हम बात कर रहे थे, वाटरशेड प्लानिंग, उसमें पीआरए भी आ गया। पीआरए मैंने ज्यादा कवर नहीं किया बिकॉज पीआरए में सोशल नीड्स ज्यादा हम हाईलाइट करते हैं। वाटरशेड पे नेट प्लानिंग, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, एक्चुअल विजिट टू द डिफंक्ट साइट, डिफंक्ट स्ट्रक्चर्स, वाटर यूजर ग्रुप, और ये सब लोगों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा नीड बेस्ड प्रपोजल हमें डिजाइन करना है हमेशा, जो लोगों को बेनिफिट करेगा, जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जो साइट स्पेसिफिक होगा और जो लॉन्ग टर्म कम्युनिटी को, फार्मर्स को बेनिफिट करेगा, इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और अपना जो वाटरशेड का ऑब्जेक्टिव है उसको वो सस्टेन करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। सो विथ रिगार्ड्स टू डिजाइन, अगर आपके क्वेश्चन डिजाइन के ऊपर रहेंगे, so definitely we are planning a series of webinar on individual structures like permanent check dam, earthen nala burn, gabion structures, lift irrigation scheme, farm pond structures. So there will be a separate webinar or trainings on that part. आज का जो मोटो था, ओवरऑल लेवल पे फ्रॉम रिच टू वैली, फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव, from natural resource management perspective, from scientific land capability classification perspective, हमें क्या चीजें देखना है, किस चीजों के ऊपर फोकस करना है और किस चीजों को इग्नोर करना है, ये ब्रॉडली यहाँ पुट अप करने की कोशिश की है। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी इसके ऊपर अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन गो अहेड। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे तरह से आपने कवर किया सर। आपके अगर कुछ प्रश्न है तो प्लीज पूछिए क्वेश्चन आंसर बॉक्स में या चैट बॉक्स में, या हैंड रेस करिए तो आपको प्रश्न पूछने का मौका भी दिया जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे वो प्रश्न लेंगे और सर उसका आंसर करेंगे। सर मुझे नहीं लगता किसी को कुछ प्रश्न है। They cannot directly ask if they are having questions. दे कॅन आस्क। राव साहेब, त्यांना जरा बोलण्याचं म्यूट अनम्यूट करायचं, So that I एनेबल can करा। at least communicate. या यस, अब आप अनम्यूट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो एंड कुछ भी क्वेश्चन है तो डायरेक्टली यू कैन आस्क मी, है ना। अदरवाइज एटलीस्ट इतना बताओ कि जो भी हमने अभी बात की है वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट समझ में आया है या नहीं, कोई भी। हाँ, अब एक क्वेश्चन आया है सर। यस। तो वो पूछ रहे हैं हाउ टू मेजर एलबीएस एंड गैबियन स्ट्रक्चर वाटर स्टोरेज। ओके, basically LBS and gabions are not meant for water storage. Basically LBS, gully plug structure, gabion structures, these are proposed for the soil conservation. मिट्टी को रोकने के लिए ये प्रपोज किए करते हैं
वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए करते हैं. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेटिंग वाटर स्टोरेज. नो डाउट गैबियन स्ट्रक्चर आफ्टर सम ईयर्स, 5-6 साल के बाद वो गैबियन का जो जाली का जो बीच बीच वाला गैप है उसमें मिट्टी, उसमें कुछ लीव्स और ये पत्ते जब सब ब्लॉक हो जाते हैं तब थोड़ा थोड़ा पानी रुकता है. बट दैट इज automatic one, that is a natural process. So while designing LBS and Gabion, we never calculate water storage quantity because these are the structures proposed to control the soil erosion. ये मिट्टी को रोकने के लिए और पानी की गति को कम करने के लिए हम प्रपोज करते हैं, so that इसके नीचे जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें मिट्टी ना आ जाए, क्योंकि पहले हम गली प्लग बनाते हैं, उसके बाद एलबीएस बनाते हैं, उसके बाद हम गैबियन बनाते हैं और उसके बाद आता है चेक डैम या अर्धन नाला बन. तो हमारा जो परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें ऊपर की मिट्टी ना आ जाए, उसमें सिल्ट ना आ जाए, वो स्ट्रक्चर का लाइफ ज्यादा हो, इसलिए इस अपर कैचमेंट में तीनों स्ट्रक्चर हम करते हैं. सो इसका objective is very clear. Its objective is to reduce the velocity, reduce the flow of water, reduce the rate of soil erosion, not conservation. We can calculate water storage for check dam, earthen nala burn, and other structures. और एक प्रश्न आया है सर, वो पूछ रहे हैं, कैन वी मेजर द क्वांटिटी ऑफ सॉइल इरोजन कंट्रोल्ड? Yes, we can measure. किसी भी डिफाइंड कैचमेंट में, जैसे हमने पहले वाटरशेड में देखा कि वाटरशेड में भी 5 हेक्टर, वाटरशेड में भी 40 हेक्टर, वाटरशेड में भी 500 हेक्टर. सो अलग अलग कैचमेंट में अगर हम सिंपल वी नॉच इंस्टॉल करते हैं और उस वी नॉच में जब बारिश का पानी बहता है तो वी नॉच में से हम वाटर को बॉटल में कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट किए हुए बॉटल में जो सॉइल का क्वांटिटी सेपरेट करते हैं और उसको उस एरिया पे प्रोजेक्ट करते हैं. सो वी कैन कैलकुलेट द सॉइल लॉस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैचमेंट. सो इट इज बिट थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड काम है, बट वी कैन इजीली कैलकुलेट. थंब रूल से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. किसी भी कैचमेंट में अगर हम पिट एक्सकैवेट करेंगे आउटलेट पोर्शन पे या लूज बोल्डर स्ट्रक्चर के अबव या गली प्लग स्ट्रक्चर के अबव, और वो पिट का डायमेंशन हम नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट ईयर अगेन हम उस पिट का डायमेंशन नोट करेंगे. सो वी कैन कैलकुलेट दैट डिफरेंस ऑफ द सॉइल क्वांटिटी और उस क्वांटिटी को हम उस एरिया में प्रोजेक्ट करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट द सॉइल लॉस. सो वी कैन गो बाय थंब रूल, वी कैन गो बाय installing V-notch or scientific measurement for sedimentation analysis. So we can easily measure the soil loss, number one. और दूसरा क्वेश्चन क्या था? What is the difference between CCT and WAT? हाँ, तो CCT is continuous contour trenches and WAT is water absorption trench. So CCT is meant for the area treatment which is in a continuous manner. एंड वो पूरे पैच पे हम करते हैं. उसका डेप्थ हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं. इट इज नॉट मोर देन 0.45 मीटर, 45 सेंटीमीटर तक ही हम सीसीटी को ज्यादा से ज्यादा डेप्थ रखते हैं, बिकॉज अपर कैचमेंट में हार्ड स्ट्राटा बहुत ऊपर लेवल तक आता है. सो उसको हार्ड स्ट्राटा तक हम एक्सकेवेट करते हैं, उतना ही लेवल का हम उसमें पानी स्टोर करते हैं. बट वैट जहां सॉइल डेप्थ अच्छी है वहां हम 1 मीटर डेप्थ लेते हैं. उसका विड्थ भी 1 मीटर लेते हैं, डेप्थ भी 1 मीटर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हम उसमें हार्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं. इट इज प्रपोज जनरली इन अ लोअर पोर्शन ऑफ द हिलॉक. वेस्टलैंड का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है उसमें हम प्रपोज करते हैं. कभी कभी इन बिटवीन भी बहुत अच्छी सॉइल डेप्थ आती है तो एक सीसीटी की बजाय हम वहां वैट का सेक्शन ले सकते हैं. सो दैट इज मोर यूजफुल फॉर कैचिंग द मैक्सिमम वाटर, कंजर्विंग द मोर वाटर. एंड उसका जो मिट्टी निकलेगा वैट का, उस मिट्टी के ऊपर भी हम अच्छा प्लांटेशन प्लान कर सकते हैं. सो बेसिक डिफरेंस इज द सेक्शन. सीसीटी का सेक्शन छोटा होता है, वैट का सेक्शन बड़ा होता है, अदरवाइज देयर इज नो मेजर डिफरेंस. जी पूछिए, आप प्रश्न पूछिए, हैंड रेज जिसने किया है.
अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। अगर आपका किसी एम में आपका प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को कॉन्जर्व करना है और आपके पास कैचमेंट कम है, एरिया कम है, सो इंस्टेड ऑफ सीसीटी यू कैन गो फॉर 2 लाइन्स ऑफ वेट ओनली। वहाँ 2 लाइन्स अगर आप वेट के करेंगे जिसका विड्थ 1 मीटर है, डेप्थ 1 मीटर है, और अलोंग द कंटूर आप इसको करेंगे, तो इट विल सर्व द पर्पज ऑफ 6 to 8 लाइन्स ऑफ सीसीटी. So that is a site specific work. So you can go for combination of CCT and VAT for control of runoff and conservation of water and soil. वाटरशेड डिलिनेशन के बारे में सबको आता है ना, वो टॉपिक मैंने कवर नहीं किया. एवरीवन इज अवेयर अबाउट वाटरशेड डिलिनेशन? वाटरशेड डिलिनेट करने आता है क्या टोपोशीट पे सबको? यस, ओके. ये हैंड रेज जिसने किया है, प्लीज अनम्यूट करके आपका प्रश्न पूछिए, और बाकी के लोग भी आप अपना Sure. अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछिए मर्सी जी। Hello. हाँ बोलिए। Yes, sir. So, about watershed delineations, in my project thesis, I've done we have delineated in ArcMap. So, we used to, just snap the pour point, उसके बाद फिर delineate किया है. Like ओके. how you were asking watershed delineation. एक्चुअली वो आज मैंने स्लाइड नहीं लिया है, बट यूजिंग टोपोशीट वी शुड डिलिनेट द वाटरशेड फर्स्ट. Okay. टोपोशीट में पूरे कंटूर्स होते हैं, Mm-hmm. तो उसमें 2 टाइप के कंटूर्स होते हैं, इनवर्ड एंड आउटवर्ड. Yes. तो इनवर्ड कंटूर्स जो होते हैं जिसमें रिज लाइन होता है, आउटवर्ड में वैली लाइन होता है. Mm-hmm. So just connecting the ridge lines and joins to the outlet point, we can delineate the watershed on topo sheet also. Okay. बस उसमें हमें ड्रेनेज नेटवर्क को ध्यान में रखना है, रिज लाइन को ध्यान में रखना है, और वैली लाइन को ध्यान में रखना है. और कभी कभी कंटूर्स टोपो शीट के बहुत दूर तक हम स्ट्रेस नहीं कर पाते, और 240 मीटर का कंटूर है तो वी नीड टू स्ट्रेस दैट कंटूर टिल द लास्ट एंड ऑफ द टोपो शीट. देन वी कैन मार्क दैट कंटूर कि यहाँ तक जाता है, फिर ये आगे आया है, पीछे गया है. सो बेसिकली वी नीड टू फोकस ऑन द कंटूर डायरेक्शन, वेदर इट इज अ रीच और वेदर इट इज अ वैली. एक्चुअली मुझे मालूम होता तो मैं वो स्लाइड लाता. नेक्स्ट वेबिनार में विल कवर दैट पोर्शन आल्सो. Sure, sure. So using TopoSheet, we can very quickly delineate the watershed. Nowadays, using digital elevation model and Google Earth, Yes, it yes. is a bit easy to delineate. Mm. But जो basic part है वो भी हमें आना चाहिए. Okay. I will just check whether that is available on BIF server. I will just see. शायद नहीं मिलेगा आज. सर तो बाइप सर्वर में दूसरा दूसरा सर्वर होता. हाँ, इथे ना BIF server. नहीं सर, यहाँ पे जो विंडोज का आइकन दिख रहा है ना, वहां पे हाँ. क्लिक करिए सर, और रन पे जाइए, और वहां पे हाँ
ये विजिबल हो रहा है आपको? Yes, sir. हो रहा है ना? हाँ। सो इसमें आप देख सकते हो कि ये टोपोशीट है। जनरली आप देखते हो टोपोशीट में ऐसे ड्रेनेज आपको दिखता है, राइट? अभी यहाँ हमारा आउटलेट है वाटरशेड का, कि हमें पहले मालूम है कि इस गांव तक हमें काम करना है। सो ये रिज लाइन जो है ये ड्रेनेज को कवर करते करते हुए पूरी जा रही है। सो इट इज वेरी क्लियर। यहाँ हमने कंटूर देख लिया, ये जो कंटूर का वैल्यू है ये रिज लाइन वाला कंटूर है। सो इस दिशा से हम इसको यहाँ ज्वाइन करें। सो ये वाटरशेड काफी इजी है, बट जो स्लोपी वाटरशेड होते हैं उसमें काफी सारे कंटूर्स का नेटवर्क होता है, तो उसमें आपको थोड़ा रिज और थोड़ा वैली को ध्यान में रखते हुए उसको मार्क करना है। बट बेसिकली ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ड्रेनेज जहां से आ रहा है उसके अबव का कंटूर को हमें रिज लाइन के तौर पे ब्लॉक करना है। मीन्स ये पानी इधर जा रहा है, ये पानी इधर आ रहा है, दोनों के बीच में ये रिज लाइन जा रही है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द मार्किंग ऑफ द वाटरशेड। एंड और एक आप लोगों को बोला था ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का। सो ये फर्स्ट ऑर्डर गली है। दो फर्स्ट ऑर्डर गली जब मिलती है तो सेकंड ऑर्डर बनती है, और दो सेकंड ऑर्डर गली जब बनती है तो थर्ड ऑर्डर गली बनती है। So watershed structures need to plan according to size of the catchment. First order गली पे गली plug, brushwood dam, second order गली पे loose boulder, gabion और check dam और like this. So दो first order goes to second, दो second goes to third. So ये बात ध्यान में रखना है। नंबर 3, ये watershed में upper, middle, lower ये टाइप पे हम काम करते हैं। So इंटेंसिव ट्रीटमेंट फ्रॉम अपर टू लोअर ये हमेशा ध्यान में रखना है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इज मोस्ट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। क्यों करना है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, लाइवलीहुड को एनहांस करना है। और 2-3 चीजें इसमें से मैं आपको बताना चाहता था इरोजन के बारे में। हम जो काम कर रहे हैं, सो ये जो 4 इरोजन्स है, बारिश जब आती है तो पहले स्प्लैश इरोजन होता है ना, जो मिट्टी को जस्ट लूज करता है स्प्लैश में। स्प्लैश को अगर हम चेक नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो शीट इरोजन चालू होता है। शीट पे मिट्टी पानी खेतों में से बहती है। ये शीट इरोजन को भी हम चेक नहीं करेंगे तो ये रील्स बनते हैं, है ना, रील इरोजन बनता है। और ये रील्स को हम चेक नहीं करेंगे ट्रीटमेंट से तो बाद में ये गलीज बनती है, और फिर ये गलीज बड़ी मात्रा में खेतों की मिट्टी को पानी के साथ अपने साथ नदी और नालों में लेके जाती है। और दिस इज द एवरेज फिगर एवरी ईयर इंडिया में अबाउट 17 टन्स पर हेक्टर मिट्टी का लॉस होता है पर हेक्टर, 17 टन्स पर हेक्टर पर ईयर। और इन स्टेट्स लाइक उत्तराखंड इट इज 200 टन्स पर हेक्टर पर ईयर। सो यू कैन इमेजिन ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सॉइल इज गोइंग थ्रू अ सॉइल लॉस। और फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें 1 सेंटीमीटर फॉर्म होने के लिए 1000 ईयर्स है। सो ये जो बैलेंस है ये अगर बिठाना है तो वी नीड टू फोकस ऑन सॉइल कंजर्वेशन फर्स्ट। सो दीज आर द पिक्चर्स, स्प्लैश इरोजन हाउ इट लुक लाइक्स। इसको अगर हम चेक नहीं करेंगे तो खेतों में से पानी ऐसे बहेगा, शीट इरोजन के माध्यम से बहेगा। शीट इरोजन को अगर हम चेक नहीं करेंगे तो छोटे छोटे रील्स हो जाएंगे, रील्स इरोजन को भी चेक नहीं करेंगे तो गलीज बन जाएंगे। सो from initial stage only we need to control every form of erosion to control the soil, to control soil loss and improve the farm productivity. Okay. यस, और किसी को कुछ प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। इसके बाद क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट वेबिनार और नेक्स्ट सेशन अगर आपको चाहिए तो कौन से टॉपिक में आप लोग इंटरेस्टेड है, सो दैट वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली इन फ्यूचर। आप बोल सकते हो, आपको अनम्यूट किया है ना। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे कैचमेंट नहीं मिलता है और खेत होते हैं किसानों के, तो फील्ड बर्निंग के अलावा वहाँ पे और क्या कर सकते हैं सर? फील्ड बिल्डिंग के अलावा
कहीं कहीं पे ऐसा होता है सर, जैसे कैचमेंट हमारा स्प्रिंग कोई नीचे है और वहां पर पूरे गांव वालों के खेत हैं और उस कैचमेंट को हमें ट्रीट करना है, तो फील्ड हाँ, बर्निंग तो हम करते हैं और साथ साथ हम उसमें ग्रासेस भी लगाते हैं, लेकिन उसके अलावा सर हम और कौन सी एक्टिविटी हो सकती है जो कर सकते हैं स्प्रिंग रिजुनेशन के लिए? स्प्रिंग ग्रेजुएशन के लिए तो स्पेशली सबसे पहले हमें थोड़ा हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करवाना है वहाँ का, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर। तो जी सर। जिसमें हाँ, तो जियोलॉजिकल स्टडी करके हमें सबसे पहले फ्रैक्चर्स कहाँ है, लिनामेंट्स कहाँ है, वो आइडेंटिफाई करना है। एंड उसी लिनामेंट को कवर करने के लिए फिर वहाँ हमें डीप पीट्स करना है, स्टैगर्ड पीट्स करना है, या कुछ डाइक्स हम कर सकते हैं जो जहाँ ऊपर कुछ जगह नहीं है, बट हम जमीन के नीचे जाके अंडरग्राउंड डाइक कर सकते हैं जो जमीन के नीचे से बहने वाले पानी को रोकेगा और स्प्रिंग को रिजुनेट करेगा। तो स्प्रिंग रिजुनेशन इज ऑलटुगेदर अ डिफरेंट मॉडल, बट ट्रीटमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम। सिर्फ वहां हमें ध्यान देना है कि लिनामेंट फ्रैक्चर्स जिस दिशा में है उसी दिशा में रिचार्ज का काम करना है। जी अगर सर। वहां जी लिनामेंट फ्रैक्चर वो वाले पोर्शन पे है तो उसी पोर्शन पे रिचार्ज का काम करो, बाकी के पोर्शन पे सिर्फ मिट्टी रोकने का काम करो, फिर बाकी के पोर्शन पे बाकी काम करने की जरूरत नहीं है। बट अदरवाइज जी सर। स्प्रिंग का जो कैचमेंट होगा उसमें भी आप सीसीटी, एससीटी, प्लांटेशन, रिचार्ज पिट्स, अंडरग्राउंड डाइक, रिचार्ज शाफ्ट्स, ऐसे ट्रीटमेंट करके वी कैन रिजुनेट द स्प्रिंग्स बेस्ड अपॉन द जियोलॉजिकल असेसमेंट। ओके, तो थैंक यू सर। जहाँ अबव ग्राउंड करने के लिए आपको जगह नहीं है वहां बिलो ग्राउंड स्ट्रक्चर कर सकते हो, जैसा अभी मैंने बोला कि कैचमेंट अगर आपको परमिट नहीं कर रहा है, वहां कुछ भी नहीं है, तो यू कैन जी गो सर। फॉर अंडरग्राउंड डाइक। आप फिर ओके। जमीन के नीचे अंडरग्राउंड डाइक करिए, वो बेस फ्लो को रोकेगा, वो बेस फ्लो को रोकेगा तो अपने आप पीछे वाले डगवेल्स जो है, डगवेल का पानी का लेवल बढ़ेगा, राइट, बट इट विल बी जी। सपोर्टेड टू जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ओके सर। एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को रिवाइव करो, अगर नया करने के लिए वहां कुछ स्पेस नहीं है, स्कोप नहीं है, तो सिल्टेशन डिसिल्टेशन करो, पुराने जो तालाब है उसमें से मिट्टी निकालो, तो वो रिचार्ज करने का काम करेंगे। वो मिट्टी प्रोडक्टिव है उसको अच्छे खेत में शिफ्ट करो, उस पर्कुलेशन टैंक में रिचार्ज शाफ्ट करो, तो वो जमीन में ज्यादा पानी डालेगा। सो यू कैन डू दैट एज पर द साइट स्पेसिफिक सिचुएशन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। जैसे सर ने पूछा आपको और किस टॉपिक्स पे वाटरशेड डेवलपमेंट रिलेटेड किस टॉपिक्स पे वेबिनार चाहिए आगे जाके, वो आप सर को बता सकते हैं। सर आप unmute- स्प्रिंग शेड की जो जब डीपीआर बनाते हैं सर, तो उसका अगर ट्रेनिंग हो जाए, उसमें क्या होता है कि जो नेट प्लानिंग होती है सर, उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, खास करके उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके होते हैं, क्योंकि वहां पर खेत बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं, तो नेट प्लानिंग के ऊपर और ये जो डीपीआर बनती है स्प्रिंग शेड की, अगर उस पर सर ट्रेनिंग हो जाए तो बेटर रहेगा Okay, सर। sure. We'll plan a separate webinar on spring shed management, right? हाँ, और डिजाइन एस्टिमेट ऑफ सीएनबी स्ट्रक्चर सर। वो तो मैंने ऑलरेडी बोला, हमने लास्ट मंथ में एमपी टीम और बाकी टीम के लिए ईएनबी लिया था, बट हम इस बार अगेन डिजाइन ऑफ चेक डैम एंड डिजाइन ऑफ ईएनबी सेपरेट वेबिनार प्लान कर रहे हैं। So we'll cover all design parameters, sample design estimate and everything in that webinar. Okay, we'll do that. We'll cover the topics in coming next financial years with frequent intervals for a check dam or the Nala burn percolation tank. And lastly, we'll cover the impact assessment. ठीक है, मुझे लगता है अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो we can stop here, right? यस सर, अगर उनके कोई प्रश्न भी है तो वो बाद में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। पार्टिसिपेंट जस्ट आपने मुझे नाम बता सकते हो सो दैट कहाँ से लोग हैं, क्या क्या देख रहे हैं, फटाफट इंट्रोडक्शन अपना अपना।
Hello, sir. हाँ, So I'm Mercy. I'm placed in Bhopal office, yes, okay, and currently we have, two projects in my hand, like NRM, ACC, and GMI, General Mill, Regenerative Agriculture. It's just started now. you did MTech in water resource, Soil right? and water, soil and water conservation. Okay, Sir, also I was saying, in the designing part, I would want to know how do I have this Excel sheet of guidelines, for the NRM structure designing. So how we have calculated that loss is assumed, like it is 50% for some structure and 30% for some structure. How is that, how did we come to that runoff 50 and coefficient, you are 30%? talking about runoff No, coefficient? loss is assumed, water Ah. loss is assumed. Okay, okay. Like deducting that will be, calculating the water storage, no? So how did we come up with this 50 and 30%? I want to know Actually, that. that is depends upon the permeability of the soil. Okay. So generally infiltration rates are defined for every agricultural zones. So based upon the infiltration data and permeability of soil, we can go for thumb rule calculation while designing those structures. Uh-huh. But if there is a major structure which is having very much highly importance and very need, then we need to go for a special infiltration test, and then we calculate the losses. But otherwise, we are having calculation based upon the infiltration rate of the soil upon the secondary data. We can cover also during that structure design. Okay, sir. Thank you. Next. हेलो हेलो हाँ 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 नमस्कार सर, मैं संजय वर्मा हूँ राजस्थान से, और बीकानेर में आईटीसी के प्रोजेक्ट के साथ में काम कर रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर। राजस्थान एमपी, हाँ, और नेक्स्ट नेक्स्ट। हेलो सर, मैं अखिलेश्वर उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पे एसीसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट, उसको मैं देख रहा हूँ अमेठी में। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, हम सुशांत कुमार बोल रहे हैं सर, राजस्थान से। ओके, ये बाड़मेर का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हाँ, मल्टी एक्टिविटी का है, वो देख रहे हैं सर। ओके ओके, गुड। नमस्ते सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। Sir, my name is Ishu Nautiyal and currently I am working on. Sir, myself Sapkari Chandrakant from Satara, Maharashtra, and I am working on a project Tata Capital and Cipla. ओके, हाँ, प्रीवियस आपका थोड़ा बीच में कट गया। Good evening sir, my name is Ishu Nautiyal and currently I am working on HPDP Panasonic project of Haljora and Haridwar, Dehradun. ओके, Hello sir, I am Chetan, working in HDFC HRDP project in Karnataka. ओके, कर्नाटका। Hello sir, Ajit Chattar from Jal Samruddhi Shaplar Khed. ओके, Hello sir, good evening. It's me Vishal Patel. I am working as a civil engineer in Haridwar in ITC project. ओके, Sir, I have a question that sometimes we are using term infiltration and sometimes we use term percolation. What is the basic difference between these two terms? Actually, these two terms are very correlated. Yes, sir. Percolation and infiltration. Infiltration we can measure, and it is up to the optimum saturation capacity of the soil. And percolation is beyond that, beyond infiltration, because deep aquifers, shallow aquifers are very deeply aligned. So when soil is saturated, or after saturation of the soil, water moves downwards,
to the cracks and small pores to the aquifer situation. In that we called as a percolation, and infiltration is the movement of the water in the soil portion. Got it? Sir, sorry, I missed the last part to what you shared. Infiltration is the movement of water from soil portion. Yes, sir. And after saturation of the soil, after saturation of the infiltration water moves downwards for contributing water to the shallow and deep aquifers. That we call as a percolation. Okay, sir. Sir, does it mean that while calculating infiltration or considering infiltration, we should say that it moves downwards only in vertical direction? Yeah. And percolation is like it's spread in surface. Exactly. Okay, thank you, sir. हॅलो नमस्कार सर, मी रोहित जाधव महाराष्ट्र सातारा मधून बोलतोय सर. शिप्ला प्रोजेक्ट साठी काम करतो मी. ओके, गुड. नमस्कार सर, मैं राजकुमार सर, मैं एसीसी फंडेड प्रोजेक्ट सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से. ओके. कैसा लगा आज का सेशन? समझ में आ गया? ठीक था? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर. बट आपका सर जैसे बहुत लोगों ने जो बताया कि कुछ चीजें, जैसे आपका सर ओरिएंटेशन काफी अच्छा रहा, काफी इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी चीजें जानने को मिली. और हम आशा करते हैं कि आगे भी सर आपका इस तरह से हम लोग को मिलेगा, ताकि हम लोग अच्छा से इम्पैक्टफुल कम्युनिटी में काम कर पाए. थैंक यू सर. श्योर. नेक्स्ट. नमस्ते सर. नमस्ते. मैं बाइफ उड़ीसा से बोल रहा हूँ, मानस रंजन राउत. मैं सर बाइफ उड़ीसा स्टेट में जो एनआरएम का एक्टिविटी चलता है उसमें मैं टेक्निकल सपोर्ट के हिसाब से देखता हूँ. प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ मैं स्टेट का. इसमें एमसीएल का प्रोजेक्ट है, जेआईटीपीएल का प्रोजेक्ट और एचडीएफसी और जेएसडब्ल्यू प्रोजेक्ट में चारों प्रोजेक्ट में टेक्निकल सपोर्ट के हिसाब से मैं काम करता हूँ सर, एनआरएम के ऊपर. ओके. Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm Ankush Nirmalkar, sir, from VSLK, Karnataka. I'm looking. Yes. I'm looking after the Billikere watershed project and living lab project. Okay. Yeah, it was a very informative session. Thank you for this session. Thank you. Next. Good afternoon, sir. This is Praveen Rankambe from Rajpur Nagar Khed, looking after Persistent Foundation project. Okay. चलो फटाफट, we need to close within 2 minutes. हो गए? सब कवर हो गए? Yes, I think Pooja done. You can conclude. Yes. I think most of them have left now. Yeah. और जो है शायद उनका इंट्रोडक्शन हो गया. So thank you, sir. Thank you very much for an informative session. Thank you all for joining. With this, we conclude today's webinar, and we assure that ऐसे ही webinar आगे होते रहेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा. तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अगर किसी टॉपिक पे वेबिनार स्पेसिफिकली चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं, हम सर तक पहुंचा देंगे वो इंफॉर्मेशन. और इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी हम हमारे एलएमएस पे डालने वाले हैं, जिसका लिंक भी हम अगले हफ्ते व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे. सो अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो. सो थैंक यू सर, एंड थैंक यू माय thing. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. हॅलो. मॅडम आम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन नाही. अच्छा, फिर आपका कोई प्रश्न है या आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट करना है, क्या है? मैडम वो आगे के रेफरेंस के लिए यदि वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है या पीपीटी मिल जाती तो अच्छा रहता.
फिर आप आपका व्हाट्सएप नंबर अभी यहाँ पे चैट पे डाल दीजिए, हम नोट कर लेंगे। चैट ओके पे ओके आपका व्हाट्सएप नंबर डालिए, हम नोट थैंक कर यू लेते हैं। थैंक यू मैम थैंक थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। Thank you, thank you. यस राव से वो नंबर नोट कर लेना। आपके नाम भी डालना प्लीज। रावसाहेब लिहिलं का तुम्ही? त्यांनी नावं पण टाकलीत बघा, प्रमोद फरांदे आणि Stop.